Today, I want to talk to you about something very exciting. Odoo Community Days, India's biggest tech business event. Odoo is the ultimate business management software. It offers over 70 apps to help you scale and manage your business, all at a very affordable price. But let's get back to Odoo Community Days. This event is huge. We are talking about over 25,000 people coming from all across India. And the best part? It's completely free. Here's what you can expect. First up, Odoo's got more than 150 insightful talks from global experts, each followed by a Q&A session. Whether you have questions about a specific project or need guidance on business growth, you'll have countless chances to connect with like-minded professionals to assist you and build relationships that could shape your business future. Even if you're completely new to Odoo, this is your golden opportunity to learn about their game-changing products and how they can revolutionize your business. And guess what? There's an after party once it's all wrapped up. So mark your calendar for August 23rd and 24th. The event will be held at Mahatma Gandhi Convention Center in Gandhinagar. I'll also be coming to the event alongside many other influencers, leaders and innovators. Don't miss out on this incredible opportunity to learn, connect and grow, all for free. To register for Odoo Community Days, click the link in the description below, and I'm looking forward to seeing you at the event. Jay. Hi. Welcome, bro. My pleasure, Prakash. Bro, I've been, where do I even begin? I think you are such a mystery on the internet. People only know about you very little. Yes. But one thanks to Ravi Gupta, by the way, Ravi Gupta. मेरे को रोज कोई ना कोई मैसेज करके बोलता है funniest guy ever. And then thanks to the fact that I ended up at your show, I am very excited for this conversation. I think your live act is probably the best live act I've seen. Maybe second best because I've seen Darren Brown and he's mind blowing. But bro, I'm talking about across the world. It is one of the best live acts I've seen. It's mind blowing what you're able to do with a microphone in your hand. Thank you for making your time, bro. My pleasure. And huge shout out to Ravi Gupta as well. Yeah, bro. Because he actually put me out in the world. When people actually came to my shows, they were like, "Acha, we heard Ravi Bhai's podcast." And Acha! Damn! I came to Pune. I was doing a show in Pune, and there was this girl who came up to me, and she's like, "I actually heard Ravi Gupta talk about you, and I was really curious what your show was all about." I was like, I hope it was worth it. And she's like, "Okay, my mind is blown right now. I'll probably send you a very long text message on Instagram after I go home, recollect all what I have witnessed tonight." And she did send me a message. A very long message. You know what? Let me start exactly there. Kyunki, see, there is a reason why we cannot talk about your show, right? It must remain a mystery for its artistic integrity. उसमें जो जादू है, वो दिखाया नहीं जाता, वो experience किया जाता है. But give me a taste. Tell me a story, bro. Tell you a story. Or before even that, tell the world what you do, and then move on to the story. Hi, ladies and gentlemen. My name is Jai Singh, and I'm a storyteller. Storyteller, India में अभी तक आप लोगों ने वो आर्ट फॉर्म विटनेस नहीं किया है. What we have witnessed so far, what the Indian world has witnessed so far is mostly stand-up comedy. Yeah. And I'm giving stand-up comedy its due because they have worked hard as well. Right. Very What hard. stand-up comedy was 7 years back, जो 7 साल पहले थी, आज स्टोरी टेलिंग वहाँ है. आज स्टोरी टेलिंग को कोई नहीं जानता. वो आर्ट फॉर्म भी अच्छे से डिस्कवर नहीं हुई है. So that is what I want to do. Right. Okay. I want to be on the stage. Storytelling is all about emotions. Stand-up comedy is like making people laugh. Storytelling can give you 1,000 emotions. And that is what exactly I want to do in the show. And coming from Haryana, that's a separate story. Damn. Yeah, Haryana. So, bro, I'll tell you what. हमें नहीं पता था, ठीक है? Like nobody, for people who do not know, जय भाई आप जाट फैमिली से आते हो, रोहतक से आते हो. हमारे साथ ना शो में हम 9 या 10 लोग लेके गया था मैं अपने साथ, और हम क्योंकि थोड़ा आगे पीछे आए तो अलग अलग सब बैठे हुए थे. एक तरफ मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसकी फियांसे नाउ टू बी वाइफ, और उसके दीदी जीजू बैठे हुए थे. एक तरफ मैं और मेरे 2 लौंडे दोस्त बैठे हुए थे, ठीक है? तो मेरे दोस्त की जो टू बी वाइफ है ना, वो जाट है, फीमेल. आप उसकी आपकी बात भी हुई थी शो में, है ना? और मेरे बगल वाला लड़का, उसने हाथ नहीं खड़ा करा था जब आपने पूछा जाट कौन है, ठीक है? मैं पूरे शो में आप जाट जोक क्रैक करो, मैं उसके पैर पे साले थे. So it was so funny for us because हम पर्सनली ले रहे थे वो सारी बातें. Because you can relate. Yeah. What's happening? This is all true. उसका मुंह उतरा हुआ था भाई. बंदे को डिप्रेशन होता है तो उसे आइसक्रीम ही सॉल्व कर पाती है. That is so fucking true. Like हमारा कोई का इलाज नहीं है. हम भाई 10वीं क्लास में होते थे. 10वीं क्लास में क्या हुआ? I used to play hockey a lot. जब हम हॉकी में खेलने लग गए तो भैया हमारे साथ क्या हुआ कि एक पटियाला से टीम आई हुई थी प्रैक्टिस करने के लिए. पटियाला अब हरियाणा से आया, हमने लड़की बहुत लेट देखी है अपनी लाइफ में, ठीक है? तो
ये बात मैं समझता हूँ. ठीक है. तो when I saw that girl from Patiala and she had this long ponytail and everything, I was smitten in love, bro. और उस टाइम पे puberty बस आ ही रही है. रास्ते में ही है. रास्ते में है, मतलब हल्का हल्का फील हो रहा है. तो वो हल्का हल्का भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो विचित्र है. कभी महसूस नहीं किया है आपने. तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मेरा एक फ्रेंड होता था हुड्डा. हुड्डा आइकॉनिक कैरेक्टर है. आज उसकी शादी हो गई है. वो मेडिकल स्टोर चलाता है मेडिकल चौक पे रोहतक में. ठीक है, मेडिकल मोड कहते हैं हमारे वहाँ पे. तो मैंने हुड्डा को बोला, मैंने बोला कितनी सुंदर है. बोलता हाँ सुंदर तो है, बात करूँ के. मैं बोला करके देख लेना एक बार. देख ले कि मैं बात सी बन जाए तो. तो बोला ठीक है मैं बात करूँगा. तो भाई हम हॉकी प्रैक्टिस ख़त्म करके जाने लगे. वो अपनी हैंडबॉल टीम की प्रैक्टिस अपनी हैंडबॉल की प्रैक्टिस करके जाने लगे. तो हमें पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ चल रहा है हमारे आगे. वो और उसका बॉयफ्रेंड आगे चल रहा है, मैं, हुड्डा और एक और पंटर पीछे चल रहे हैं. हुड्डा के दिमाग में पता नहीं अचानक से क्या आया. मतलब उसे जरूरत नहीं थी बोलने की. मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरी बात नहीं बनेगी. पर फिर भी हुड्डा जी बोले हैं. और क्या बोले हैं, बोलते रे मैडम तने यो आया, इससे तो मारा जय बेटर है, इसमें क्या कमी थी. और भाई वो मेरी किस्मत इतनी खराब, पटियाला की हॉकी टीम का कैप्टन हो. जब हम मैच खेलने गए पटियाला के साथ, जब मैच होता था तो हमारा ये होता था कि कितने गोल से हारेंगे. हमारा ये नहीं होता था कि जीत सकते हैं इनसे. नहीं. उस पूरे मैच में पटियाला टीम ने गोल नहीं मारे, उन्होंने मुझे मारा. वो इंजरी आपके उसमें आवाज सिर्फ ये आ रही है, वो लाल कच्ची रू फाड़ो, लाल कच्ची रू फाड़ो. मैं बोला भाई अच्छा पहला. भाई उसके बाद मेरे को लगा कि मेरी जिंदगी में ना कुछ उदासी होगी. मेरे को दादी के पास जाना चाहिए. दादी इज माई लाइक सेवियर. राइट. You talk about it a little bit, yeah. Yes. Yeah. She is my savior. मतलब लाइफ में जब भी कुछ भी मुश्किल अड़चन आए, दादी के पास जाएं. हाँ. एंड दादी चाहे वो तुम्हारी हो, दादी चाहे वो मेरी हो, शी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरी टेलर. दादी से अच्छी कहानी कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि दादी का एक तो दिल औरत का, उसके अंदर वो ममता है, उसके अंदर वो मासूमियत है, उसमें वो गहराई है. और दादी बनते बनते वो पूरी दुनिया देख चुकी है. तो वो तुम्हें दुनिया के बारे में किस किस पर्सपेक्टिव से बता सकती है ना, उससे बेटर कोई नहीं बता सकता. तो मैं और मेरा भाई दादी के पास चले गए और मैं बोला दादी बहुत ना ऐसे मन सा उदास हो रहा है, कोई कहानी सुना दो यार दादी. और दादी क्या मोटी सी बड़ी प्यारी सी खाट पे बैठी रहती थी. और वो एक अमरूद का पेड़ लगवाया था उन्होंने. जब मैं पैदा हुआ था तो उन्होंने एक अमरूद का पेड़ उगाया. और वो मेरे को प्यार से वतन सिंह कहती थी कि मैं वतना उनका, और मेरे बड़े भाई का नाम वीर सिंह रखा हुआ था, तो वो उनका वीरा हो गया. तो जब वतना पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, तो मेरी दादी ने ना एक पेड़ उगाया था. और वो उनकी मासूमियत थी या कुछ भी कह लो, वो कहती कि जैसे जैसे मेरा वतना बड़ा होता जाएगा ये पेड़ साथ साथ बड़ा होता जाएगा. मैं जब वतना, क्योंकि हम घर पे नहीं रहते थे, पापा फौजी थे तो इधर उधर ट्रैवल करते थे, बोलते जब वतना मेरे पास नहीं होगा मैं इस पेड़ को देख लूँगी. ऐसा होता है एक औरत का. तो मैं गया दादी के पास, मैंने दादी को एक कहानी सुना दो. बोलती कौन सी कहानी सुनेगा. मैंने बोला दादी कोई भी सुना दो, सारी एक जैसी होती है, उसमें सारी में ज़िंदगी की सीख मिल जाती है. दादी ने शुरू करी. दादी कहती है कि मेरे प्यारे वीर वतन, पता है यहाँ से बहुत दूर एक गांव होता था. उस गांव का नाम था मिसिंग, MISSING. सोचो क्या गांव का नाम. अब छोटे बच्चे को क्या समझ आएगा कि मिसिंग गांव क्यों है. कहती है वो मिसिंग गांव का नाम मिसिंग इसलिए था क्योंकि उस गांव में जो भी शख्स रहता था उसका बॉडी का कोई ना कोई अंग मिसिंग था. और क्योंकि उनका बॉडी का कोई ना कोई अंग मिसिंग था तो उसी मिसिंग अंग की वजह से उनका कैरेक्टर, उनका व्यवहार उसी तरीके से बदल जाता था. और उस व्यवहार की वजह से लोग कहते थे कि इस गांव पे एक शराप है कि इस गांव में रहने वाला हर इंसान अकेला है. जैसे किसी का हाथ नहीं था तो वो किसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पाता था मदद करने के लिए, तो वो अकेला था. जैसे किसी के पैर नहीं थे तो वो किसी के साथ चल नहीं पाता था, तो वो अकेला था. जैसे किसी इंसान के पास कह लो कि दिल नहीं था पर दिमाग था, तो वो सबको छलता था, वो सबको ठगता था, तो सब उससे दूर रहते थे, तो वो अकेला था. और किसी के पास दिमाग नहीं था मगर दिल था, और वो दिल से सब कुछ करता था, तो लोग उसे पागल कहते थे, तो सब उससे दूर रहते थे कि ये तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगा. इस गांव के बाहर एक कुटिया थी जहां पे दो भाई रहते थे, वीर सिंह और वतन सिंह. वीर सिंह जो था वो बड़ा भाई था, और वो मेरे बड़े भाई की तरफ इशारा करती, कहती ये बड़ा समझदार होता था, ये होता था. और उसका एक छोटा भाई होता था वतन सिंह, वो बड़ा मासूम सा, बेवकूफ़ सा, भोला सा होता था, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी.
तो एक बारी किसी बात पे वतन सिंह ने वीर सिंह का दिल दुखा दिया, और मैं यहाँ दादी से लड़ पड़ता कि आपने यहाँ पे भी वतन सिंह को बेवकूफ़ दिखा दिया, मेरे को नहीं क्यों बने हीरो बनाओ मुझे। तो दादी कहती है एक बारी वतन सिंह ने वीर सिंह का दिल दुखा दिया, और फिर क्या हुआ, वीर सिंह नाराज होकर घर से बाहर चला गया। वतन सिंह को पहले तो लगा कि वीर सिंह शाम तक वापस आ जाएगा, पर जैसे जैसे शाम से रात होती गई वैसे वैसे वतन सिंह के दिल में जो घबराहट थी वो डर का रूप लेने लग गई। और क्योंकि भोला है, नादान है, पता नहीं है, दुनिया नहीं देखी है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अमरूदों का बड़ा शौक था, तो वतन सिंह ने अपना एक अमरूद उठाया और कुटिया के बाहर गया। जब वो कुटिया के बाहर गया तो उसने बाहर देखा कि सामने लाइटें जल रही हैं। ये लाइटें जो जल रही थी ये मिसिंग गांव में जल रही थी, और जब उसने मिसिंग गांव को देखा तो उसके दिल में एक डर आया और एक उम्मीद आई। डर ये आया कि उसका बड़ा भाई जो वीर सिंह है वो कहीं मिसिंग में तो नहीं चला गया, क्योंकि उस पर तो शराब है कि वहाँ पे तो शरीर का अंग मिसिंग हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, इंसान अकेला हो जाता है। पर उसके दिल में एक उम्मीद भी आई कि अगर वो मिसिंग गया है तो वो मिसिंग में मिल जाएगा। तो अपनी उम्मीद को अपने डर से जिताने के लिए बेवकूफ़ सा वतन सिंह अमरूद उठाता है और मिसिंग गांव तक पहुंचता है। और मिसिंग गांव की एक दहलीज है, वो दहलीज के इस पार खड़ा होता है तो वो देखता है कि उस पर कोई नहीं है। जैसे ही वो दहलीज लांघता है तो वो भी अब गांव का हिस्सा बन गया। अब उसे लोग दिखने शुरू होते हैं, अकेले लोग, भटकते लोग, जिनको पता नहीं है कि वो जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं। दे आर लॉस्ट। कुछ रिलेट हो रहा है? किसी और दुनिया से रिलेट हो रहा है? इस दुनिया से रिलेट हो रहा है भाई। दुनिया को पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ भाग रहे हैं। और जैसे ही वो अंदर घुसा उसने देखा कि एक सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और उसके नीचे एक इंसान खड़ा है, और उस बरगद के पेड़ के नीचे इधर दूर एक इंसान बैठा हुआ है जो अकेला बैठा है और वो बड़बड़ा रहा है। और ये जो पेड़ के नीचे जो इंसान है ये इस इंसान पे चिल्ला रहा है, पर ये इंसान इसकी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। पर वतन सिंह को तो अपने भाई को ढूंढना है, तो ये इसके पास जाता है। ये जो इंसान चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कहता है, हेलो सायर, माई नेम इज वतन सिंह एंड आई एम द यंगर ब्रदर ऑफ वीर सिंह. वीर सिंह आई थिंक हैज कम टू मिसिंग. हैव यू सीन हिम? तो वो बंदा उसको रिप्लाई करता है, हाय, मेरा नाम दिल है, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास दिल है, और लोग मुझसे दूर रहते हैं क्योंकि वो मुझे पागल समझते हैं. और हाँ, मैंने तुम्हारे भाई वीर सिंह को देखा है, उसको अभी अभी दिमाग लेके गया है. दिमाग ने उसको अपनी बातों में फंसाया, बहलाया और उसको ले गया. और इससे पहले दिमाग तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत करे, तुम उसे अपने होने का एहसास दिलाओ और उसे बचा लो. तो वतन सिंह उसको कहता है कि वो दिमाग उसको लेके गया है, आप मुझे दिमाग के पास लेके जाएंगे? बोलते मैं लेके तो जाऊंगा, पर एक शर्त है. कहता क्या? बोलता मैं लेके जाऊंगा तब, मेरी भूख मिटाएगा जब. और वतन सिंह ऐसे जेबें छानने लग जाता है. कहता मेरे पास पैसे नहीं है, माई आई हैव नो दाल रोटी, माई औकात इज वेरी छोटी, बट विल दिस लिटिल अमरूद फिक्स योर भूख का मूड. और वो ऐसे अमरूद दे रहा होता है उसको. और जैसे वो अमरूद देने जाता है तो ये बंदा जो इधर बैठा था ये चिल्ला पड़ता है, कहता है वतन, इसे अपना अमरूद मत दो, ये दिल नहीं है, ये दिमाग है. ये दिमाग है जो दिल बन के तुमको छलना चाह रहा है. इसकी बातों में नहीं आना है. वतन सिंह कहता है तो तुम कौन हो? वो कहता है मैं दिल हूं. कहता है ये, वतन सिंह कहता है कि ये भी दिल है और ये भी दिल है, दोनों में से कौन है दिल? अब मैं कैसे समझूं? मैं तो बेवकूफ हूं, नादान हूं, मैं तो इस दुनिया में आज आया हूं, मुझे तो दुनियादारी की समझ नहीं है, मैं कैसे समझूं? ये इंसान जो साइड में बैठा था ये कहता है देखो, तुमने इससे पता पूछा, इसने कहा कि ये तुम्हें वहां ले जाएगा, पर ये बदले में तुमसे कुछ मांग रहा है. तुम मुझसे बोलो, मैं भी ले जाऊंगा, पर मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए. ही कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस. आई एम सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. मैं दिल हूं. दिल ऐसा ही होता है, बेवकूफ होता है, नादान होता है. कहते तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ गया है? कहता है नहीं. बोलते तुम्हें दिमाग का घर पता है? कहता है ढूंढ लेंगे. तो वतन सिंह अपना अमरूद बचा के इस इंसान को अलविदा कह के इस इंसान के साथ गांव में घूमने लग जाता है.
पहले वो एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिसके पास हाथ नहीं थे, और यहाँ पे एक दूसरे से लोग बात भी नहीं करते हैं क्योंकि अकेले हैं। तो वो उससे पूछते हैं आपको पता है दिमाग का घर कहाँ है? वो चाहता तो इशारा कर सकता था पर हाथ नहीं थे, बात वो कर नहीं सकता। फिर वो दूसरे इंसान के पास गए जिसके पास पैर नहीं थे, तो उससे पूछते हैं आपको पता है दिमाग का घर? तो वो ऐसे इशारा करता है और सामने दीवार खड़ी होती है। और वतन सिंह क्योंकि बेवकूफ़, भोला है, नादान है, वो जब उसको इंसान ऐसे करता है बार बार, उसे लगता है कि वो उसे गेट आउट कह रहा है, तो वो उसके घर से निकल जाता है। 1-1.5 घंटे तक वतन सिंह और उसका दिल गांव में घूमते रहते हैं, और वतन सिंह को लगता है कि दिल को शायद रास्ता पता ही नहीं है। तो वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि दिमाग कहाँ रहता है? वो कहता है नहीं। बोलता पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ले जाओगे। बोलता मैं ले तो जाऊंगा पर वो तो मेरी उम्मीद थी ना, दिल तो उम्मीद पे चलता है। तुम अगर मुझसे ये पूछते कि मुझे क्या उसका घर पता है तो मैं तुम्हें मना कर देता, पर तुमने मुझसे ये पूछा कि तुम मुझे लेके चलोगे तो मैंने हाँ बोल दी। दिल तो ऐसा ही होता है, उम्मीद पे चलता है। बोलता है ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने मुझको? क्या वीर सिंह इस गांव में आया भी था? कहता है नहीं। बोलता पहले क्यों नहीं बताया? कहता है क्योंकि तुमने दिल से बात ही नहीं करी। दिल के पास सारे जवाब होते हैं अगर तुम सही सवाल पूछ सको तो बोलता है हमें यहाँ से जाना होगा। और ये बात जब सुनी कि वीर सिंह गांव में नहीं आया, वतन सिंह बहुत खुश हो गया यार। बोलता नहीं मेरा भाई बच गया, मेरा भाई बच गया, मेरे भाई पे श्राप नहीं लगा। वो जैसे ही उस गांव के दहलीज पे निकलने के लिए दोबारा पहुंचा, उसने वो दहलीज लांगी और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो दिल गायब हो जाता है। और वो जैसे ही दहलीज के इस पार आता है फिर दिल दिख जाता है उसको। आंखों में आंसू हैं, उदास है, क्योंकि वतन सिंह उसको छोड़ के जा रहा था। वो कहता है तुम मेरे साथ चलोगे दिल? तो दिल कहता है कि इस दहलीज को लांघूंगा ना तो बाहर एक अलग दुनिया है। मैं जिस दुनिया में रहा हूँ मुझे उसकी आदत पड़ गई है। अब मैं दूसरी दुनिया में जाऊँगा तो शायद वहाँ पे डर लगता है कि मैं ख़राब ना हो जाऊँ। तो वतन सिंह उसको कहता है अरे मैं हूँ ना, मैं हौसला हूँ तुम्हारा, मेरा हाथ पकड़ो, दिल को हौसला मिल जाएगा और मैं सब संभाल लूँगा। वतन सिंह दिल का हाथ पकड़ता है और उसे दहलीज के इस पार लेके आता है। और जैसे ही दहलीज के इस पार लेके आता है उसके ऊपर से श्राप हट जाता है कि अब वो अकेला नहीं रहेगा। और जैसे ही श्राप हटता है वो दिल वीर सिंह की शक्ल ले लेता है। और उस वक्त उसको एहसास होता है वतन सिंह को कि ये जो दिल था ये हमेशा से उसका वीर सिंह था। वीर सिंह जो था वो वतन सिंह का मिसिंग था, और जो वतन सिंह था वो वीर सिंह का मिसिंग था। जब वो गांव में घुसते हैं वो पहली बात यही कहता है कि अपने भाई को अपने होने का एहसास दिलाओ। उसे उसका दिमाग चल रहा है और जैसे ही तुम अपने होने का एहसास उसे दिलाओगे सब ठीक हो जाएगा। वीर वतन सिंह अपने भाई, अपने दिल को कहता है कि मैं तुम्हारा हौसला हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अपने होने का एहसास दिलाता है अपने भाई को और उसके भाई को बचा लेता है। और ये दादी ने हमको सुनाई। और उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे भाई और मेरा भी झगड़ा चल रहा था, 1 सेकंड में सॉर्ट आउट हो गया। ऐसी होती है कहानियों की बात है, ऐसे होते हैं कहानियों के जज्बात। और यहाँ पे बैठे हम लोग मिसिंग की दुनिया में खो गए कि मिसिंग गांव ऐसा था, ये था, वो था, फलाना था। मैं इमेजिन करने लगा भाई कि मतलब ऐसे लाइटें लगी हुई हैं, वो दूर है गांव। हाँ। और हम ये भूल गए कि दादी खाट पे बैठी है अमरूद के पेड़ के नीचे और वो अपने 2 बच्चों को कहानी सुना रही है। और वो ये कहानी क्यों सुना रही है? क्यों? क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, बहुत अकेली है और वो हमेशा से अकेली रही है। इस कहानी जिसका बचपन में कोई सर पैर नहीं लगता था, जो उसको पता थी कि उसके छोटे छोटे पोते जो हैं वो समझ भी नहीं पाएंगे, वो फिर भी ये कहानी सुनाती थी क्योंकि उसको किसी से बात करनी थी यार। वो अकेली हो गई थी, वो बात करने का बहाना ढूंढती थी। तो दादी हमको कहानी सुनाती है तो ये दादी हमको कई बारी शौक से कहानी नहीं सुनाती है, वो तुमसे बात करना चाहती है बस। एंड दैट इज वेयर माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज्ड। दैट इज वेयर आई थॉट कि मैं दादी से कहानियां ही सुनता रहूंगा सारी उम्र, कि दादी तू कुछ भी सुना, हाँ पर तू सुना। भाई पता है, ऑल थिंग्स सेड एंड डन, आई मीन
कोई कुछ बोले और उससे आंसू आ जाए आंख में एक बात होती है, आपके पास कोई स्विच है, यू नो, लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट I'd be, you just turned it on and I was like tearing up because I'm back in 2016 when my grandma was passing. I remember मैं ना घूमने गया हुआ था, I was in पौंडीचेरी, 2016 जनवरी की बात है. मेरे को घर से फ़ोन आया, मम्मी कहती है बेटा दादी की तबीयत ख़राब है, यू नो. और मेरे को उस दिन नहीं समझ आया मैं क्या करूं भाई, क्योंकि मैं 20 साल का था, राइट. तो मैं अपनी एक स्कूटी ले रखी थी, मैं उस स्कूटी लेके ना ड्राइव करने लगा भाई. मैं निकल गया, मतलब मैं हाईवे पे चढ़ गया, मैं हाईवे पे उस जाए जा रहा हूँ. मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे प्रोसेस करूँ. वो पूरी ट्रिप ख़त्म करके मैं कहीं रुका, चाय वाय पी, वो पूरी ट्रिप ब्लर में निकल गई. मैं वापस आया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ अब जो है ना, द क्लॉक हैज़ स्टार्टेड. इट्स गोना टेक हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक, बट द क्लॉक हैज़ स्टार्टेड. और हमें लगा 1-1.5-2 महीना, क्योंकि तबीयत ख़राब थी. उस चीज़ ने 9 महीने लिए भाई. 9 महीने शी फॉट, राइट. और मेरे पापा बहुत बिजी आदमी हैं, मेरी मम्मी बहुत बिजी हैं, तो घर पे ले दे के जब तक वो रहते थे, वरना मैं हमेशा रहता था. मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, मैं घर रहता था, मैं ध्यान रखता था. मैं पूरे उस साल में ना, पूरे साल में एक दिन, 4 सितंबर का दिन था या 3 सितंबर का दिन था, एक दिन आइल्ट्स का पेपर देने चंडीगढ़ गया था. मैं रास्ते में घर आ रहा था भाई, मेरे को फ़ोन आया मेरी बहन का. मेरे को फ़ोन उठाने से पता था पहले कि क्या हो गया. मैंने फ़ोन उठाया, मेरी बहन कहती है शी इज़ नो मोर. और इट वॉज ऑलमोस्ट एज ए वो वेट कर रही थी कि मेरे को ना देखना पड़े भाई. मैं घर आया, मैं घर में अंदर घुसा, जैसे मिसिंग गाँव की दहलीज में वतन सिंह घुसता है ना, बाहर तक सन्नाटा था भाई. घर के गेट में घुसते ही मेरी लाइफ बदल गई. मैंने अपने पापा को पहली बार रोते हुए देखा, और मेरे पापा सीधा मेरे पास आए, मेरे कंधे पे सर रख के रोने लगे. और मैं शॉक में, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. अपने बाप को रोते हुए देखा आदमी ने, मेरे दादाजी रो रहे हैं, ये पुरस्कृत दुनिया के मशहूर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लोग हैं जिन्होंने मेरे को बड़ा किया, ये आंसुओं से रो रहे हैं मेरे कंधे पे सर रख के. और मेरे को उस दिन एक बहुत गहरा मैस्कुलिन मर्दों का सच रियलाइज हुआ कि कभी कभी तुम्हारा रोना ऑप्शन ही नहीं होता भाई. आप रो ही नहीं सकते, क्योंकि आज उनका दिन है, आज आप उनके लिए खड़े रहोगे. उस दिन मैंने बोला मैं तब रोऊंगा जब ये लोग रोना बंद करेंगे. सब कार्यक्रम, सब क्रियाक्रम हुए, सब हुआ, मैं रोया नहीं. मैंने उस दिन, मेरा एक दोस्त रात को घर आया हुआ था, वही दोस्त जो आपके शो में भी था, जिसकी टू बी वाइफ जाटनी है. मैंने उसे बोला भाई मैं रो नहीं सकता. कहता क्यों? मैंने बोला यार मैं रो जाऊंगा तो फिर कौन नहीं रो, सभी रो रहे होंगे, मम्मी रो रही हैं, पापा रो रहे हैं, दादाजी रो रहे हैं, बुआएं रो रही हैं, किसी को तो नहीं रोना ना, वो मैं हूँ. मेरे को याद है जब हमने उनको देह को अग्नि लगाई और वो ख़त्म करके हम निकले शमशान घाट से, तो मेरा दोस्त एकदम से ना अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये गाड़ी में आ गया. सेम दोस्त, वो गाड़ी से निकला, मैंने उसको देखा, और देह में अग्नि लगने के बाद रोते नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं. मैं उसके पास गया, मैं उसे गले लगा और मैं बस रोया. मैं 2 या 2.5 घंटा सिर्फ रोया, क्योंकि तब मेरे को 9 महीने में पहली बार एहसास हुआ कि क्या हो गया है. और अब ना उनके जाने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो चली गई हैं भाई. माई ग्रैंड मदर शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन अ जाट हाउस होल्ड. एंड व्हेन आई से जाट्स, आई डोंट मीन टू डिमीन एनीवन, बट जब विलेज की बात आती है, वहाँ पे जो औरतों के जो हक की लड़ाई है ना, फिलहाल वो लड़ी जा रही है शहरों में, पर उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट दिखता है गांव में. जो हक नहीं मिल रहे हैं ना औरतों को, वो गांव में किस किस लेवल तक नहीं मिल रहे हैं वो तुमको भी नहीं पता है. व्हाट आई फील दैट दादी को कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ ज़िंदगी में. कभी शायद उन्होंने ये इमोशन फील ही नहीं कर पाए कि मैं ज़िंदगी में कुछ हूँ, मतलब मेरा कोई वजूद है, कि मैं कोई ऐसा काम भी कर सकती हूँ लाइफ में कि जिससे मेरे ऊपर अटेंशन आए, राइट, जिसमें लोग मुझे वैलिडेशन दें. शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि वैलिडेशन कुछ होती है, राइट. वो इतनी भोली, इतनी मासूम कि मैंने अपनी दादी को अपने हस्बैंड से, मेरे दादा से डांट खाते हुए सुना है, और उसके मुंह से उफ नहीं निकलती थी, और वो सुन लेती थी, और वो चुपचाप जाके बैठ जाती थी अपनी खाट पे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. और मैं छोटा सा होता था, मेरे को इतना तो समझ आ जाता था कि कुछ गलत हुआ है, पर मेरे को नहीं पता होता था कि क्या गलत हुआ है. तो मैं दादी के पास जाके बैठ जाता था,
तो एक दिन ऐसे दादी के पास बैठा हुआ, तो दादी बड़ा मतलब ऐसे उदास सी थी, तो मैंने ऐसे गले उनको लगा लिया। दादी थोड़ी मोटी थी, तो मैं ऐसे जितना हुआ उतना लगा, और ना एक बारी दादी ने ना बस ऐसे किया, और दैट सेड 1,000 वर्ड्स विच वाज कि मैंने ऐसे लगा तो मेरा जो सर था उनकी ऐसे सीने पे लगा, एंड ऑल शी डिड वाज कि वो ऐसे उन्होंने मेरी सर पे यहाँ पे अपनी चिन रख दी, शी लव्ड इट। वो एहसास आज भी मेरे को खाता है कि मैं अपनी दादी के लिए उस दिन कुछ नहीं कर पाया। हेल्पलेसनेस। और मेरी दादी शायद मुझसे कुछ कहना चाह रही थी और मैं सुनने लायक भी नहीं थे, मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। सेम हैपेंड। एक बार की बात है, दिल्ली आई हुई थी हमारे घर पे, और दादी ने कुछ किया भी नहीं था, और मैं बड़ा इमेच्योर किस्म का होता था, तो मैंने ऐसी झूठी शिकायत लगा दी दादी की कि दादी तो मज़े लेने के लिए, और वहाँ पे दादा भी थे, तो दादा ने सुना, तो दादा ने दादी को बहुत झाड़ दिया भाई, बहुत झाड़ दिया। और मैं ये कह रहा हूँ कि झाड़ना हमारे यहाँ पे, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर टू द ऑडियंस कि झाड़ने का मतलब वर्बली नहीं है सिर्फ, क्योंकि गांव की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब भी मेरी दादी कुछ नहीं बोली, और फिर दादी ऐसे बैठी हुई थी, मैं सामने बैठा, मैं दादी कहानी सुना दो। दादी ने बैठ के मेरे को कहानी सुनाई, और जब दादी ने मेरे को कहानी सुनाई, उस दिन कुछ समझ नहीं आया। जब बड़े हो गए तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि दादी मेरे को कहानी इसलिए सुना रही थी कि जब उनकी बात पे कोई हाँ हाँ करता था, उनकी बात पे कोई कहता था कि फिर क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, ढिमकाना क्या हुआ, तो उनको लगता था कि उनकी बात कोई सुन रहा है। क्या डीप नीड है उस चीज़ की, है कि कोई सुने तो। वो ज़िंदगी भर उसने 1000 लोगों से बातें करी रहेंगी, और किसी ने उसको सुना नहीं रहेगा ब्रो। ये भाई, ये आपको तब रियलाइज हुआ था व्हेन शी वाज अराउंड, एज अ पोस्ट दादी गोइंग अवे रियलाइजेशन? हाँ, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग द गिल्ट की, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट माई दादी इन द शो, आई फील कि तुम लोग को अपनी दादी दिखती है, मेरे को अपनी दादी दिखती है। मेरी दादी बहुत मासूम, ऐसी जिसमें मतलब छू लो ना तो मैली हो जाए भाई, ऐसे चरित्र की औरत। और फिर ये सीन हुआ कि हमेशा दिल में इस बात की नाराजगी शायद रह गई कि जाते वक्त मिल भी नहीं पाया, मैं देख भी नहीं पाया, और अब मेरे को नहीं पता दादी कहाँ है, आफ्टर लाइफ होती भी है या नहीं होती है, वो ये देख भी रही हैं, वो ये महसूस भी कर रही हैं, क्या कर रही हैं। बट आई जस्ट विश दैट व्हेन शी वाज अलाइव आई कुड हैव heard her more. That's what I feel ki bro, do you realize that you are a storyteller because your dadi was a storyteller? But I really wish कि कोई एक ऐसा शो दे दे भगवान कि जिसमें मेरे को मेरी दादी ऑडियंस में बैठी दिख जाए। मेरे को दादी की बस एक बार ये सुननी, मेरे को 2 बार भी नहीं सुननी, मेरे को एक बार सुननी कि भाई दादी, मेरे बेटे ने मेरी बात करी और मेरी दादी ने ताली बजाती, मतलब सारी दुनिया की तालियां एक तरफ, दादी की एक ताली एक तरफ, मेरे को बस वही चाहिए यार। पता है सब कुछ अधूरा लगता है एक पॉइंट के बाद की, जब आप कितनी भी स्ट्रगल कमा लो जिंदगी में, कितना भी कुछ भी कर लो, वो जो एक ताली चाहिए होती है ना, वो सुननी होती है यार, वो कान तरसता है उस एक ताली के लिए। वो एक ताली कुछ भी हो, वो ताली नहीं मिल रही है यार। मैंने बड़े से बड़े शो कर लिए, मैं ताल कटोरा भी कर लूँगा। मैं ताल कटोरा पता क्यों, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस दिन ना मैं अपने आप को ना एक वो कर दूंगा, अपने आप को ना एक झूठा दिलासा दे लूँगा कि ताल कटोरा इतना बड़ा था कि मेरी दादी बैठी थी, मैंने देखी नहीं, मेरे को दिखी नहीं मेरी दादी।
कि भीड़ में से, तालियों के बीच में से उनकी आवाज आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी, पर मेरे को सुनाई नहीं दी। तो मैं ये दिलासा खुद को दे लूंगा कि मेरी दादी आई थी। मैं पता है, मेरी दादी हमेशा मेरे को कहती थी कि बेटा मेरा वतना, तेरे को पता है तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। जैसे स्कूल में कभी कोई मार देता था, सारी चीजें। आई वाज अ वेरी फ्रेजाइल किड इन द बिगिनिंग। मेरा वतना, जब तू जिंदगी में आगे जाएगा ना, तो देखना तेरे एक दिन तो दूर दूर से लोग सुनेंगे तेरी बातें। इतना मत उदास हुआ कर, कोई बात नहीं, उसने मार दिया, उसका दिल छोटा है पर तेरा दिल तो बड़ा है, तू माफ करते, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। पर एक दिन ना तू देख लेना, सबसे आगे जाएगा। मैं बोला जाऊंगा दादी, जाऊंगा दादी, जाऊंगा दादी। जब मैं गया, सब आ गए। वो जिस स्कूल फ्रेंड से लड़ाई हुई थी वो मेरे शो में आ चुका है। भाई मेरी दादी नहीं आई। मेरे को वो बस एक बार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस हो जाएगा मेरा उस दिन। The biggest validation for my art is the validation that I can never seek, and probably that's how my storytelling eventually will go mad and will eventually cross the borders of artistry into madness. you actually think that? It will happen. आज बोल रहा हूँ, 10 साल बाद देख लेना। There is no peace in death for you in that way कि ऊपर से लाइक वो दिलासे वहाँ काम नहीं आते कि वो ऊपर से सुन रही हैं, वो है मेरे साथ, मेरे दिल में है। आते हैं ना कभी कभी, जब दिल इतना भारी नहीं होता ना, तब तो खुद को दिलासा दे लेते हैं कि अरे हाँ दादी सुन रही है। पर जब दिल भारी हो जाता है ना, फिर ये दिलासा भी काम नहीं करता। फिर कुछ और स्ट्रांग दिलासा देना पड़ता है खुद को। तालकटोरा मेरा वो स्ट्रांग दिलासा है कि उस दिन इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि अपने लोग पहचान नहीं पाए। मैंने देखा है अपनी पापा की आंखों में ये। वो अब उन्हें अवार्ड मिलते हैं ना, उनको लोग बुलाते हैं ना, शायद वो उतने खुश नहीं होते भाई। एक बार पापा घर आए, बड़े अपसेट थे कुछ प्रोफेशनली किसी बात पे। मैंने बोला पापा उदास हो? कहते नहीं बेटा, उदास हो के क्या फायदा, मम्मी थोड़ी है जिनको दिखा सकूंगा जीत के भी। भाई मैं बिखर गया भाई, अपने बाप को ऐसे देखने के बाद मैं बिखर गया। भाई सब सिखाया जाता है दुनिया में कि मतलब एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, मतलब वो पेट्रियार्की वाली बात है। हाँ, कि पेट्रियार्की ने औरतों को घूंघट दिया है और हमसे हमारे आंसू छीने हैं। पेट्रियार्की तो जेंडर नहीं, सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ये बात मैं हमेशा एस्टैब्लिश करता हूँ। हमें सब सिखा देते हैं बड़े होते हुए कि घर संभालना है, सारी चीज़ें संभालनी है, पर इमोशन संभालना कोई नहीं सिखाता। कि एक तो क्योंकि पापा से कभी वो बात नहीं हो पाती कि पापा आज ना थोड़ा सा मन उदास है, नहीं हो पाती है व्हाइल वी आर ग्रोइंग अप। तो वो पता ही नहीं है कि वो कम्युनिकेशन कैसा होता है एक बाप और बेटे के बीच में। तो जब पापा बिखरते हैं ना, तो बड़ा क्लूलेस सा हो जाता है, समझ नहीं आता। तो छूं या नहीं छूं, या इधर खड़ा रहूं या हंसाने की कोशिश करूं, क्या करूं, बस खड़ा रह जाता आदमी और वो देखता रह जाता है। एक वो होता है ना कि एक घर ईंटों से बनता है, ईंट के ऊपर ईंट लगती है तो वो बनता है। तो जो बाप होता है ना, वो नीचे ईंट होती है, उसके ऊपर औलादें आती हैं, उसके बाद पीढ़ियां बननी शुरू होती हैं। जब वो नीचे वाली ईंट हिलती है ना, तो ये लगा लो कि ऊपर की ईंट भी हिलेंगी। और कई बार अगर वो इतनी हिल जाए कि पूरा घर गिर जाता है। तो डैड, दिस कम्युनिकेशन दैट वी, जो कम्युनिकेशन गैप है ना बिटवीन सन्स एंड फादर्स, it's an emotional death trap. It's a tragedy. It is a tragedy, and we are living it. Yeah. With what's worse that we know it is a tragedy and we still don't know how to fix it, because our father has gone through the same thing that we are going through. Yeah. So he doesn't know how to communicate with their son. Right. He has a lot of affection, but he doesn't know the right ways or probably the way to show it. Yeah. Emotional channeling नहीं आती. And we don't understand. Agreed. परमीश भाई आए थे, उन्होंने कहा था, कहता है यार हम सोचते हैं हम कितने अकेले हैं, हमारे बाप कितने अकेले हैं यार।
हम तो फिर भी इस उम्र में दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, हम ऐसी बातें कर लेते हैं, पॉडकास्ट के सहारे ही सही बात तो हो जाती है। हमारे बाप कितने अकेले हैं। और भाई मतलब अब मैं टचवुड इस बात को बहुत किस्मत मानता हूँ, मेरी और मेरे पापा की बहुत लड़ाइयाँ रही हैं, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही रहा है। हमने इतनी लड़ाइयाँ कर दी कि दरवाजे टूट गए, अब टूट चुका है भाई, अब खुली हवा बहती है। अब मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, अब कुछ नहीं उखाड़ सकते। और जब वो उदास भी होते हैं ना, पापा बोलो ना, बोलो, मस्ती मजाक कर लो, वो बोलेंगे नहीं, पर उनको पता है उनका बेटा साथ खड़ा है। वो सिंबॉलिक लेवल पे ही बात हो जाती है, वो आंखों में ही देख लेते हैं, मेरा लाल है, देख लेगा। और फिर ना आप एक अलग स्टेज, मैं ये लोगों को कहता हूँ और मैं समझता हूँ कई लोगों का घाव होता है नहीं भरा होता, मेरा भर गया है। फिर आप उस स्टेज पे जाते हो जहाँ आपका बाप ना इतना प्राउड होता है कि मेरा बेटा ये कर रहा है, उसके मन में वो दैट क्लिक भाई, वो इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। एंड द गुड और द वियर्ड थिंग इज इट केम आउट ऑफ ट्रेजेडी भाई। लाइफ में कहीं और कुछ हो रहा था, तो मैंने पापा को फोन किया पहली बार, बोला पापा लाइफ दिक्कत में है। पापा ने बोला सब छोड़, तू घर आ जा, मैं देख लूंगा। उस दिन से यार मैं अपने बाप का हो गया। पहले 22-25 साल लड़ाई करी, एक फोन कॉल लगनी थी यार, बराबर हो गया सब यार। Bhai, this sounds very lame when we say it to each other, but only people who have felt this will relate कि हाँ ये कितनी सच्ची बात है और कितनी ऑनेस्ट बात है कि जब लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ रही हो, कितना भी मुश्किल से मतलब वो होता है ना कि हमारी भी एक कैपेबिलिटी है जितना हम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड कैपेबिलिटी जब थिंग्स हो जाती हैं और फिर हम जब परेशान होते हैं, एक जैसे ही माँ बाप को जाके बता देते एक बर्डन ऐसे फट करके उतरता है, बिल्कुल, और वो अचानक से इतना लाइट फील होता है। चाहे पापा ने ये भी ना बोला हो कि मैं संभाल लूंगा या नहीं संभाल लूंगा, पर वो बोलते ही इतना लाइट फील हो जाता है ना कि वो हमारी साइकी है कि हाँ अब रिलैक्स, मेरे पापा खड़े हैं मेरे साथ। बिल्कुल। एंड दिस साउंड्स वेरी लेम बट दिस इज सो ट्रू। 100% मैंने फील किया है वो। और मैं ना भाई पता है रो इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मेरी फटी पड़ी है अंदर। अभी मेरे पापा मेरे सारे शो देखते हैं। अभी कल परसों 3-4 दिन पहले किसी बात पे लड़ाई हो गई, कहते नहीं देखूंगा मैं, तेरे को इतनी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला नहीं मेरी फट गई भाई, ऐसा मत करना। एक ही तो खुशी है मेरी कि मेरे पापा सीना ठोक के मेरी चीज़ें देखते हैं। मैं तो सोचना ही नहीं चाहता भाई, मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ। वो दिन तो मेरे को पता ही नहीं मैं हैंडल कैसे करूँगा जब मेरे माँ बाप नहीं होंगे देखने के लिए मेरी ये चीज़ें। उन्हीं कोई एपिसोड आता है ना जो नहीं चल रहा होता तो बुरा लगता है ना भाई, कभी सीट नहीं बिकी, कुछ भी हो गया। पापा कहते हैं बहुत बढ़िया था ना, अरे यार मन ठंडा पड़ जाता है यार, मन ठंडा पड़ जाता है। कोई मैं तो सोच नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा यार, मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो अंदाज़ा ही नहीं है, मेरे को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं तो क्या कहाँ छुपा दूँ मैं उस सच को। मैं भी ऐसा ही होता था। अब गाँव जाने की हिम्मत नहीं होती, अभी भी नहीं होती, घर देखना पड़ेगा। अरे यार फोटो लग गई है यार दीवार पे। एक बार गया, वो फोटो देखी, ऐसा लगा कि जैसे खाना अंदर से बाहर आ जाएगा, और घर से बाहर निकले तो सामने अमरूद का पेड़, साला वहाँ पे खाट नहीं भाई। और फिर ऐसा हो गया कि मतलब जहाँ पे बचपन गुजरा वो खाने को दौड़ने लग गई चीज़ें, खाने को दौड़ने लग गई। और फिर वहाँ से बाहर निकले तो गांव से दूर रहो तो ऐसा लगता है कि दादी से दूर रहते हो, गांव जाओ तो ऐसा लगता है कि दादी है नहीं। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आता है भाई, कुछ समझ नहीं आता है। और मतलब ये एक ऐसा गिल्ट है विच आई विल प्रॉब्ली कैरी टू माई ग्रेव, बिकॉज माई दादी हैड गिवन मी हिंट्स विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग। मेरे को चंडीगढ़ जाना था, that's why I smiled when I told you about my चंडीगढ़ thing। हाँ, मेरे को चंडीगढ़ जाना था और मेरी दादी को उसके 2 दिन बाद निकलना था वहाँ से, हमारे दिल्ली वाले घर से गांव के लिए। मेरी दादी ने मेरे को रोकने की कोशिश करी थी, पर मैं जवानी के नशे में चूर भैया पागल निकल गया वहाँ से। वापस आया तो फिर दादी नहीं थी। और फिर वो गिल्ट कि मैं तो जवानी के नशे में गया था। उसने मुझसे आखिरी बार यही मांगा था कि रुक जा। मैं रुका नहीं। अब दादी नहीं आती, कितनी भी आवाज़ लगा लूँ, मतलब कितना भी बड़ा हो जाऊँ। पता है, आफ्टर दैट डे माई फादर हैज़ नॉट हर्ड द ग्रैंड मदर बिट इन माई शो, बट माई मदर इज़ लाइक, उस दिन ना एक इतनी प्यारी बात बोलती उन्होंने अभी 2 दिन पहले, वेयर शी वाज लाइक कि जय मैं तो तेरे शो में आऊँगी ना तो मैं तो देख दर्शक बन के आऊँगी। उस दिन मैं तेरी मम्मी नहीं, उस दिन मैं तेरी दर्शक हूँ, मैं तो तेरा शो देखूँगी।
उनको नहीं पता उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी मेरे को, कि मेरी जो खुद की माँ है वो एक बारी को मेरे से अलग होके वो ये देखना चाहती है कि मेरा बेटा करता क्या है, माँ बन के नहीं पर ऑडियंस बन के। मेरे को भी देखना है जो तू जब स्टेज पे करता है तो और लोगों को क्या महसूस होता है वो मेरे को भी महसूस करना है। वो मेरी माँ कर रही है, पर आई हैव नॉट till this very date, till this very moment, I haven't developed the amount of courage, the amount of gut it takes to invite my father to that show. भाई वो तो टूटेंगे एक बार। वो इंसान अपने बेटे की जीत में खुश होगा और अपनी माँ के गम में रो रहा होगा भाई। वो ख़त्म वाला सीन हो जाएगा। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही पापा को बोलने की। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपने पापा को बोला कि वो ताल कटोरा के शो पे आएंगे? बोलती रहने देते हैं, बस इतना ही बोला। क्योंकि मेरी माँ जो है ना वो मिनिएचर वर्जन है मेरी दादी का। तो जो गलतियाँ मैंने दादी के साथ करी है ना तो मैं दोहराना नहीं चाहता अपनी माँ के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, कैश निकाला, 2000 निकाले, 500 रुपये खर्च हो गए, 1500 बच गए। घर आया तो 1500 वॉलेट में नहीं, जाके सीधा मम्मी को दे दिया। पता है मेरी मम्मी का ना एक छोटा सा गुल्लक है यार प्रकार, ठीक है। और वो गुल्लक पता है क्या है, किसी ने मेरे को इटली से लाके कुछ चॉकलेट्स दी थी, तो वो गोल्ड डब्बे में आई थी, स्टील के डब्बे। समझ गया। हाँ। तो उसके अंदर ना कुछ नहीं है, उसके अंदर 10 रुपये के नोट, कुछ सिक्के, कुछ कैश, वो सारे चीज़ें, बड़े नोट सारे, वो सारे नोट उस डब्बे में वो हैं जो मैंने उसको दिया। उसका एक छोटा सा गुल्लक है। मैं बोला इसका करेगी क्या? बोलती स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। इतनी भोली है यार, मतलब वो इतनी एक्सपोजर हमको बड़ा करता है ना। हाँ। मानते हैं? हाँ 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 हाँ। मेरी माँ को वो एक्सपोजर नहीं मिला एक एज के बाद। शादी के बाद? शादी के बाद नहीं मिल पाया। हाँ हाँ। क्योंकि गांव से निकलने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो लगते हैं। तो पापा ने वो स्टेप्स लिए इवेंचुअली, पर पापा को थोड़ा टाइम लग गया। और जब वो बाहर आए वहाँ से तो मेरी मम्मी की पर्सनालिटी बहुत दब चुकी थी। शी डिडंट हैव द करेज टू फेस द वर्ल्ड। सो इवन इन टुडेज वर्ल्ड ना शी इज जस्ट लाइक अ वेरी स्कैर्ड पर्सन इनसाइड। द इंटरनेट कैन बी अ वियर्ड प्लेस, क्योंकि ये वाली कॉन्वर्सेशन मर जाती है एक मॉडर्न अर्बन फेमिनिज्म और एक रिएक्शनरी मेल रिस्पॉन्स के बीच में। ठीक है, वो लोग आपस में लड़ लेते हैं, जो एक्चुअली जहाँ इन चीज़ों को लेके इश्यूज हैं ना, वो बातें मर जाती हैं। द इम्पैक्ट ऑफ हैविंग एन एडुकेटेड वुमन इन द फैमिली इज इंसेन। ठीक है। कैन माय मदर हैज गॉट डबल बैचलर्स, डबल मास्टर्स, बट आप ये सोचो ना कि सोसाइटी में पेट्रिया के खंबे ने किस तरीके से दबाया रहेगा कि वो जो सारी एजुकेशन थी वो भाड़ में चली गई, लेजिट भाड़ में चली गई। आई किड यू नॉट, माई मदर वुड हैव बीन अ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, शी हैड द ऑफर, बट पेट्रियार्की, माई फादर साइड ऑफ द फैमिली डिड नॉट लेट हर एक्सेप्ट इट। इन माई केस माई फादर वॉज माई मदर्स नंबर 1 सपोर्ट। सो व्हेन जजशिप, मेरी मम्मा जज हैं, उनको जब ऑफर आया ना, एवरीबडी सेड क्या करना है, एवरीबडी। कुछ लोगों ने गुस्से से, कुछ लोगों ने ट्रिवियली, पापा ने बोला करना है। और भाई द डिफरेंस इट हैज़ मेड इन द वे आई, बिकॉज आपको ना एक टाइम के बाद अपने आप को एज द सब्जेक्ट नहीं देखना होता, एज द इन्फ्लुएंस देखना होता है। माई फादर इज एन इन्फ्लुएंस टू मी, माई मदर इज एन इन्फ्लुएंस टू मी। व्हेन आई सी माई फादर टेल माई मदर तुम करो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। आप बच्चे पे सोचो इम्पैक्ट क्या आता है। यार आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ हर, एंड दिस इज हाउ आई विल ट्रीट पीपल इन द फ्यूचर। Exactly, this is exactly what you'll do with your wife or your girlfriend. Exactly, and this begins at the level of my नाना और my दादा ना। क्योंकि नाना जी ने मम्मी को बोला पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करो। मम्मी को अकेले भेज दिया उस जमाने में दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करो, रिस्क होगा कोई नहीं पर पढ़ाई करो। क्या जेनरेशनल चेंज आ सकता है एक स्विच को फ्लिप किए हुए। एक आदमी की हिम्मत और एक औरत की हिम्मत से पुश्तें बदल सकती हैं भाई। एंड आई जेन्युइनली फील लाइक द कॉन्वर्सेशन, यू आर वेरी राइट, इज डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि जहाँ पे औरतों को सच में सुनने जाने की और उनके फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर एम्पावरमेंट, वेयर देयर इज एक्चुअल अटेंटिव नीड, वो रूरल एरियाज में है। आवाज़ सुनने और आवाज़ सुनने में फ़र्क होता है। बोलते हुए भी आवाज़ आती है, पर एक आवाज़ होती है जो दिखती नहीं है। समझ वो वाली बात जो है ना, कि
औरतें वहाँ पे बातें करती हैं पूरा दिन आपस में बैठ के, पर वो पूरे दिन आपस में बैठी बैठी ना पूरे दुनिया जहान की इधर उधर की बातें कर लेंगी। फिर एक औरत आएगी, मैं एक बताता हूँ, एक बहुत स्कैरी सी लाइन है, इतनी स्कैरी नहीं है पर सुनने में, क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा खुल चुका है ना, तो हमें बहुत स्कैरी लगी। गांव में एक औरत कहती है अचानक से, अरे मेरे पति ने तो कल रात को भी मेरे को शराब पी के पीट दिया। दूसरी कहती है, तेरा भी ईसाई है, मेरा भी ईसाई है, मेरे वाले ने भी पीट दी। एंड द कॉन्वर्सेशन एंड्स। अच्छा था, बुरा था, क्या था, कोई बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्म बन गया है। कितना नाजायज था, कितना मतलब भगवान की आंखों में कितना सही था, कितना कुछ नहीं मैटर, कुछ नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट। और ये चीज़ ना, ये चीज़ थोड़ा सा खाती है। और ये क्योंकि लड़ाई लड़ो, पर है अभी बहुत कुछ करना। हाँ, वो इतना डीप रूटेड है ना कि इसको निकालने से सिर्फ इंस्टाग्राम पे प्रोटेस्ट करने से नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इंस्टाग्राम नहीं है। हाँ सही बात। तुम्हें ग्राउंड में जाके ऑन ग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, वो ऐसी बात है। सही बात। वहाँ पे गांव में जाके ना औरतों से बात करोगे ना, तो औरतें ही तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देंगी, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है ना, वो उनका नॉर्म है। खुद अनकंफर्टेबल नहीं होंगी वो बोलते हुए। हाँ। तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे सुन के। ठीक है, वहाँ पे बॉडी शेम, अरे ए काड़ो, क्योंकि उसका रंग काला है, उसको पूरी उम्र आदत हो गई है काड़ो सुनने की, उसके लिए वो काड़ो कान में वाइट नॉइज बन गया है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर अगर भाई तुम्हें कोई ऐसे कह दे, कोई लड़की है, कोई वहाँ पे खड़ी है, हु इज वेल एजुकेटेड है, उसको एक काड़ो, शी विल टेक ऑफेंस ऑफ इट, वो चांटा मारेगी आके, वही होपफुली। हाँ, और वो ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं हमारे, मतलब विलेजेस में ऐसा हो रहा है। पर्दा सिस्टम, सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। मेरी ताई घूंघट करती है भाई, मेरी माँ घूंघट करती है, तो मैं तो कहता हूँ अपनी माँ को मत निकालो, हो गया बहुत हो गया। मैं बोला अब मैं हूँ ना, खड़े रहो। और टू सम डिग्री ये चेंज आता भी उससे कि घर का मर्द कौन है, मर्द कौन है, मर्द कौन है, क्योंकि वो देखो पेट्रियार्की हैज इट्स फॉल्ट्स, मैं मना नहीं कर रहा, बट लेट अस से इट इज एटलीस्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पावर मूवमेंट। और पेट्रियार्की में भी अल्फा बीटा गामा है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन? मतलब देयर इज अ अल्फा मेल इन द हाउस। हाँ, राइट, ऑलवेज, या राइट। And that alpha male being judicious, sensible and rational changes everything. पूरा परिवार बदल जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा होते हुए। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, और मैं आपको बता नहीं सकता। I am the greatest learning I have seen from my father is that the reason I speak about him every podcast is because I can never thank him enough. One of the greatest examples he said was the world can be against us. मैं अपनी वाइफ के बगल में खड़ा हूँ, मैं अपने बच्चों के बगल में खड़ा हूँ, कर लो जो करना है। ये ऐसा अल्फा मेल मिले ना भाई आदमी को, तो वो उसको भगवान मानेगा भाई। मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फादर, बिकॉज माई फादर 3 years for 3 years I did not speak to my father. If he was in the same room, I would go to the other room. If I was in his room, he would go to the other room. वो वाला हिसाब था। For 3 years we did not speak to each other. But धीरे धीरे मैं भी चेंज हुआ, my father also changed, and today there is nothing about me that my father doesn't know. Like everything, when I say everything, right from my smoking habit to everything else, my shows. If I have a flight to catch at 3 a.m. in the morning for Mumbai, because I have a show in Mumbai, my father will be up at 2:45. Because he wants to see me off, he wants to say all the best, he wants to give me a pat on the back before I leave the house. You know, with that, दादाजी और नाना जी आज भी, मतलब मेरे नाना जी, मेरी मम्मी वीकेंड पे अप डाउन करती हैं अपनी जहाँ पोस्टेड है ना, तुम सही आई हो, और फिर 1 घंटा बात करेंगे, मम्मी मेरे पास आएंगी, बोलेंगी यार पापा भी कितने कमाल हैं। आज भी मेरे से पूछ रहे हैं, मैं 60 की होने वाली हूँ, कि तुम फ्लाइट में ठीक बैठी कि नहीं बैठी। पापा मेरे को आज भी फोन करके, सब ठीक है, शो अच्छा रिकॉर्ड हुआ। अबे कभी तो बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन बाप के लिए नहीं बड़े होते भाई। बाप की बापता के लिए कोई बड़ा नहीं होता भाई। नहीं होता। तो जब when the father also turns his power in this soft way and looks at the people he is responsible for ना, उसकी भी बड़ी एक बहुत वैसी वाली फीलिंग होती है। मम्मी पूछ ले तो मैं रो ही जाऊं, जब मम्मी फोन करके पूछ ले तू ठीक है, तो वैसे ही आंसू निकल आते हैं यार, कुछ नहीं बचता अंदर, सब दबा हुआ बाहर आ जाता है भाई, सब बताने का मन कर देता है यार। अरे यार एक काम करते ना, पापा को आई लव यू टेक्स्ट करते ना बैठे बैठे। भाई ये हम कर चुके हैं भाई। मैं अगर पापा को मैसेज कर दिया, वो ना रिप्लाई भी नहीं करेंगे, बोलेंगे ठीक तो हो। आई लव यू पापा मैंने लिखा है, आई लव यू पापा, और क्या लिखना है? प्लीज वॉच प्रखर के प्रवचन। ठीक है, आई लव यू पापा प्लीज। नहीं भाई ये नहीं लिखना है यार, ये तो मैं बकचोदी कर रहा हूँ। Please bring ice cream when you come home. Damn.
ब्रो आपने कभी सोचा आप बाप बन जाओगे तो कैसे क्या होगा? मैं बहुत बकचोद बाप बनूंगा। अभी बाय चांस बने हुए तो नहीं हो ना कहीं पे बाप? नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं कह अच्छा हाँ, ये वाला पता नहीं करेंगे हम, ठीक है. बट बिकॉज मेरे लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ फादर इज ऑल्सो बीन शिफ्टिंग इन रियल टाइम, बिकॉज आई नो आई एम लाइक 5 years 10 years फ्रॉम बीइंग अ फादर. अब वो वाली बात नहीं रहेगी भाई कि वो बाप और मैं बेटा. अब मैं बाप और यहाँ बेटा बेटी आने वाले हैं. तो जब आपने बोला ना आइसक्रीम ले आना, मेरे को पता है क्या ख्याल है, एक दिन मेरे को भी आइसक्रीम लानी है, बड़ा मजा आएगा आइसक्रीम लाने में. क्या स्ट्रेंज ख्याल है. मैंने क्यों किया है ये आइसक्रीम वाली बात क्यों करी? क्यों? क्योंकि मैं आइसक्रीम मैं लेके जाता हूँ घर. आइसक्रीम मैं लेके जाता हूँ. मेरी मम्मी को आइसक्रीम बड़ी पसंद है. तो जब मम्मी को खुश करना होता है ना, या फिर कुछ भी रैंडमली घर में कोई बात होती है तो हम कह देते हैं कि आइसक्रीम ले आता है, तो मैं आइसक्रीम ले जाता हूँ. आज मैं पापा को कहूँगा ना, अब क्या है ना, अब पापा से पैसे खर्चे तो लेते नहीं है, बड़े हो गए हैं, सारा खर्चा खुद ही निकालते हैं, सारी चीज़ें खुद ही करते हैं. आज पापा को पहली बार ही बोल दिया कि अच्छा खर्चा ले कर दो हमारे ऊपर, देखना बहुत अच्छा लगेगा, खुश हो जाए, बहुत खुश रहेंगे. अजीब बात है ना. ये फैमिली वाली बात जो है ना, ये एक ऐसा मंदिर है भाई. मैं आप भी ऑस्ट्रेलिया रहे हो, मैं अमेरिका रहा हूँ, मैं पता है अमेरिकन से कभी बात करता हूँ ना, मैं उन्हें कहता हूँ तुम यहाँ आते हो, तुम देखते हो, कहते हो साले इंडिया में टॉयलेट नहीं है, लोग सड़क पे रहते हैं, कितने गरीब हैं. मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारे यहाँ परिवार नहीं है, माँ बाप नहीं है, तुम कितने गरीब हो. हमारे यहाँ पे फिजिकल पॉवर्टी है, तुम्हारे यहाँ स्पिरिचुअल पॉवर्टी है. तुम मिस कर रहे हो, तुमने मंदिर बना के तोड़ दिया है गलती से, वापस जोड़ लो, बैठ जाओ अंदर जाके. यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग. एग्जैक्टली, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन. मतलब जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो इवेंचुअली उसको कोई संभालने वाला चाहिए होता है. मतलब अगर 2 माँ बाप अकेले ही रह रहे हैं, बूढ़े ही रह रहे हैं. पर इनका पता है, मैंने यही रियलाइज करा है, आप ना मर्द से उसका काम मत छीनो, बहुत टाइम जिंदा रहता है. तो इसमें ये वो वाली बात है कि वहां पे बिकॉज पीपल आर इंडिविजुअल, दे लिव सो लॉन्ग बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स दैट लॉन्ग, राइट. बट आई स्टिल फील पीपल आर सो रॉब्ड ऑफ द जॉय ऑफ फैमिली इन द वेस्ट. हम लोगों को वो मिलता है. एंड आई मेक इट अ पॉइंट इन एवरी शो. आपके साथ तो ट्राई भी नहीं करना पड़ा, बट आई आस्क इवन रवि भाई, आई आस्क एवरीवन हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली, बिकॉज आई वॉन्ट एनीबडी हु वॉचेज माई शो टू रिफ्लेक्ट. क्योंकि कईयों के घर में लड़ाई भी चल रही होगी जायज, पर उनके मन में रहे ये बात कि कभी लौटना है. भाई वन रिलेशनशिप दैट आई कैन लेजिट वाउच, पुट अ पिलर इन द ग्राउंड, hoist a flag on it and say that this relationship of mine is something that I have perfected, something that I'm 100% honest about, is my parents. Because प्यार इश्क मोहब्बत 1000 डेफिनेशन बना लो, प्यार इश्क मोहब्बत कुछ नहीं है, बस वो घर है जहाँ तुम लौट के आते हो और वो तुम्हें क्या फीलिंग देता है, बस दैट्स इट. एंड दैट इज समथिंग दैट मैं इतना सुखी हूँ ना कि जब शो बढ़िया हो चाहे ख़राब हो, जैसा भी हो, घर आता हूँ, अपने कमरे में लेटता हूँ, एक बारी माँ आके पास में बैठ जाती है ना, सब सॉल्व हो जाता है भाई, सब सॉल्व हो जाता है. आई एम वेरी हैप्पी दैट वे, वेरी सॉर्टेड दैट वे. एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, टू ऑल द आर्टिस्ट आउट देयर हु वांट टू pursue this path and want to become storytellers, comics, whatever, keep your relationship with your parents sorted, because there are a lot of things that can go wrong on the stage, but if you perfect this at home, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. इसका नाम मोहब्बत जिंदाबाद क्यों है? इसका नाम मोहब्बत जिंदाबाद इसलिए है क्योंकि आई बिलीव फ्रॉम व्हाट द लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड दैट मोहब्बत इज एन अम्ब्रेला टर्म. टेल मी मोर. अम्ब्रेला टर्म एज इन कि बहुत अलग अलग तरह का प्यार देखते हैं हम जब बड़े हो रहे होते हैं. हम मोहब्बत सोचते हैं क्योंकि आज थोड़ा कल जेन ज़ी का ज़माना है, राइट, तो लड़का और लड़की की मोहब्बत होती है ब्रो, या सिर्फ वही होती है. राइट राइट राइट. बट देयर इज सो मच मोर टू इट. आपकी दादी भी आपसे प्यार करती है, आपके पापा भी आपसे प्यार करते हैं, आपका दोस्त भी इनफैक्ट आपसे प्यार करता है. हट साले जा यहाँ से. हाँ, उसकी इज्जत नहीं करते वो बात Right, है, पर प्यार है, बिकॉज दैट्स व्हाई ही इज स्टिल विद यू. या राइट. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, आई रियलाइज व्हेन आई वाज पुटिंग इट ऑल टुगेदर, आई रियलाइज कि द एंटायर बैकबोन is just love, different forms of love. और जो बंदा बना है ना, चाहे वो तुम भी हो, you are basically all those different kind of love just coming together. And that is what, now that you think about the show, it is what it was all about. राइट. And all of that coming together, when वो सारी मोहब्बत इकट्ठी होती है, तभी तो वो इंसान लाइफ में जीतता है. नहीं तो तब तक कुछ ना कुछ छूट रहा था ना, कि कभी यहाँ से उधड़ गई जिंदगी, कभी यहाँ से उधड़ गई, आप इधर कवर करते हो तो यहाँ से फट गई.
फिर जब वो सारी तरह की मोहब्बत उसको किसी ना किसी रूप में मिल जाती है, तब वो इंसान जीतता है. कभी कुछ मिसिंग है, कभी कुछ मिसिंग है. एग्जैक्टली, दैट्स द बैकबोन ऑफ Right. मोहब्बत जिंदाबाद. मैंने आप लोगों को मोहब्बत जिंदाबाद बता दिया बाय द वे, ना बता के. मैं पता है, द रीजन आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन इज बिकॉज व्हेन आई हर्ड मोहब्बत जिंदाबाद एंड आई थिंक देयर वाज समथिंग इन देयर, तो मेरे को पता है वो लाइन याद आई नुसरत फतेह अली खां के कवाली में से, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो. मैं पहली बार सुनी थी, 20-21 साल का था, उसके लिरिक्स पुल अप कर, और मेरे को तब रियलाइज हुआ, और ये पोएट्री और कहानियां जैसी चीजें ही कर सकती हैं भाई, कि मोहब्बत और दिल लगी में भी फर्क है. और आप चाहते हो मोहब्बत, पर कई बार उसे कंफ्यूज कर जाते हैं हम दिल लगी से. हाँ, है ना, पोजेशन की फीलिंग से. इवन दो मोहब्बत इज अ मोर यूनिवर्सल फीलिंग कि मतलब मोहब्बत है, चाहे तुम मेरे पास हो कि नहीं. मैं समझता हूँ एक हेल्दी ब्रेकअप इस टाइप का होता है कि अब वो हो गया भाई, 2-2.5-3 साल हो गए, मेरे दिल में आज भी मोहब्बत है, मेरे को चाहिए नहीं वो, और कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसकी जीवन है, वो खुश है, पर मतलब यार क्या दिन थे वो भी, आप समझ रहे हो. दैट इज, मतलब आई बिलीव दैट इफ इट्स लव ना, तो वो इतनी हेट्रेड आपके दिमाग में डेवलप हो ही नहीं सकती उस इंसान के लिए. वो हेट्रेड इज एन इंटरिम बहाना कि मैं तुम्हें दूर कर सकूं कि तुम कितनी बुरी हो, या डोंट यू थिंक इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिनायल समवेयर? What do you mean by that? I mean, for example, if I have a nasty breakup, and then I've developed these excuses for myself sometimes, like human tendency. Yeah. I have had one nasty breakup in my life, where I don't know whether I was at fault or whether I was not at fault, but I developed some kind of excuses for myself. Okay, tell me more. मतलब मैंने उसके कुछ bad traits पकड़े. हाँ. और उनको अपने दिमाग में इतना हाईलाइट किया, बार बार अपने दिमाग में इतना हाईलाइट किया, इतना उनको एक्सपोनेंशियल कर दिया कि एक पॉइंट पे मेरे को उससे चिढ़ होने लगी, इवन द थॉट ऑफ इट. वो पर नेचुरल प्रोसेस नहीं था, वो मैंने खुद डेवलप किया था, क्योंकि आप ब्रेकअप करना चाहते थे. हाँ. तो वो धीरे धीरे करके मैं गैस लाइट करता गया अपने आप को ही गैस लाइट कर रहा हूँ यार. मैं करता गया एंड आई स्टार्टेड हेटिंग हर by something which was developed by my own brain. Yeah. And that made it easy for me. Call it selfish. Yeah. But I think हम कर लेते हैं कई बारी ना उस तरीके की नफरत भाई जो नेचुरल नहीं होती. बहुत कभी ऐसा होता है कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ और इसने चीटिंग कर दी, मेरी मम्मी को इंसल्ट कर दिया, अभी मैंने देखा, तो मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, राइट? वरना आपको एक दूसरे की फॉल्ट शुरू से पता होती है, फिर आपका मन बदल जाता है, और आप ना फिर उसको उस चोट की तरह वो खुजली करते रहते हो जब तक वो खुजली दाग नहीं बन जाती, और फिर आप बोलते हो ये देखिए तू है, जा अब तू जा. आप समझ रहे हो? और यही होता है, क्योंकि आदमी जिस चीज के लिए लड़ाई कर रहा होता है, एक दिन पहले उससे प्यार होता है उसी बात के लिए, कि तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे ही तो तुम मेरे से फोन करके कहती हो कहाँ हो, क्यों फोन करती है, वो सेम बात है. ब्रेकअप से पहले वो प्यार है, ब्रेकअप के बाद वो जलाती है, एक्सक्यूज बन जाता है वही चीज. एग्जैक्टली. तो आई हैव ऑलवेज सेड कि ये जो ब्रेकअप वाला फेज है ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप अपने मन में कड़वाहट पैदा करते हो. इस आदमी को आपने 2-3 साल मोहब्बत करी है, वैसे भगाना भी तो है, अपने दिल से भी भगाना है, लाइफ से नहीं. हाँ, क्योंकि वरना आप आगे नहीं जा पाओगे, और अगर आप गए तो फिर घूम के वापस आओगे, और आपको हेल्दी पॉइंट बाद में मिलेगा ही तब जब आप बोलोगे कि यार अब तो गई, बढ़िया करना है, हाँ बढ़िया ही थी, कोई नहीं भाई. तो आई थिंक दैट इज द रियल फीलिंग यू हैव फॉर पीपल डेड और अलाइव इन योर लाइफ और नॉट. जो प्यार की बात करते हैं ना, वो आपके मोहब्बत के कॉन्सेप्ट से मैच करती है. दिल लगी एक बड़ा स्पेसिफिक, मेरे को ये याद आया एक वो, हाँ, दैट्स व्हाट बेसिकली समराइजेस द एंटायर नोशन व्हेन आई फिनिश माय शो. दैट इज द एंटायर, लाइक पहले जब मैं शो एंड करता था तो आई वांटेड पीपल टू बी मोटिवेटेड. But then over a point of time I realized that motivation is not everything, man. Yeah. There is a better feeling than that, which is hope. So I want to end it on hope. Damn. It's a very interesting point. And just for you to understand, some bar in that dark alley. I get what you mean. Right. That is hope. Right. So I want to end it in hope because hope is universal. अब वो चाहे तुम हो, मतलब मैं नहीं जानता तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या है, मुझे नहीं पता तुम कितने डीप डाउन अंडर हो, क्या पता मेरी मोटिवेशन का जो लेवल है वो तुम्हारी डेप्थ में अगर डालूं तो भी कहीं नहीं पहुंचती, डेप्थ फिर भी शायद वो उसको भर ना पाए. पर होप साली एक ऐसी चीज है जो अगर किसी इंसान में इतनी सी भी आ जाए इतना बड़ा इम्पैक्ट दे देती है. सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू एंड दिस शो ऑन होप, बिकॉज होप हर इंसान को लगती है.
जिसको नहीं भी दिख रही होगी ना, अगर सोचो उसको इतनी मोटिवेशन की देने की बजाय जो सक्सेसफुल ना, अगर मैं इतनी होप देने में सक्सेसफुल हो गया, मैजिक। इंसान का क्या है, हाँ, इतने इतने दिलासों में आ जाता है। क्या लाइन है भाई, वो क्या लाइन है, उसी पे तो टूटता है आदमी। कहता है भाई यार इतने दिलासों में आ जाता है। और आप सही में सोचो, आदमी के साथ बुरा हो रहा है, ठीक है भाई, कभी कभी होता है, बहुत बुरा हो जाता है। आपने दोस्तों के पास जाओ, वो एक साल अपनी सस्ती सी दारू की बोतल में से कुछ मिक्स करेगा, बोलेगा भाई सब ठीक हो जाएगा, मान जाता है इंसान और भाई। हाँ ठीक हो जाएगा भाई। इससे मतलब जब मैं शो लिख रहा था ना, और जब मैं सारी चीज़ों को व्हेन आई वाज पुटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, आई हैड मेड श्योर कि एक चीज़ है जो मेरे को नहीं करनी है, व्हिच इज आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट टू मच। आई जस्ट वांट एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय इमोशंस। श्योर, I want to just keep it very on the surface level when it comes to me, but I want to, say those things which a person with double masters or probably a PhD can understand, or which a auto rickshaw wala also can understand. राइट। वो दोनों बातें उन दोनों इंसानों को समझ आनी चाहिए और दोनों पे बराबर इम्पैक्ट आना चाहिए। क्योंकि जो बीच में बैचलर्स करके निकले मेरे जैसे, वो तो बेवकूफ हैं, हमें तो कुछ नहीं पता लगेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, I know what you mean। हाँ, किसमें करी थी? साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। Okay, as long as it's not engineering, I don't count. नो ब्रो, नो, मैं कर ही नहीं पाता इंजीनियरिंग में भाई। हाँ, तुम में वो बात नहीं है। नहीं है, हाँ नहीं मैं पैदा होते इंटरनलाइज कर लिया था मैंने कि मेरे को आईटी नहीं करना। एंड आई फील लाइक आई डॉज्ड अ बुलेट देयर ब्रो। कितनों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है किसमें? इंजीनियरिंग की बात? आईटी करने की रेस में भाई। आईआईटी की बात अलग है, हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, वो एलीट है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप कह रहे हो मतलब यही टियर 2 टियर 3 इंजीनियरिंग। हाँ, देखो एक बस होती है मर्सिडीज की, हाँ, एक होती है अपनी हरियाणा रोडवेज की। हाँ, हम हरियाणा रोडवेज वाले हैं। हरियाणा रोडवेज की बस के बाहर लगी हुई उल्टी, वो कि मैं जा रही हूँ रोहतक, कि मैं जा रही भाई हूँ साहब ये जाएगी। देखिए मारुति की कितनी तेज चलाने लग रहा है, बोलते ये काजू किशमिश ये बढ़ाओ रखे, यूं ना जाएगी। हाँ, नैनो, मेरी मौसी का नाम है नैनो। आप are you currently dating someone? No, भाई। No. Is this something you cannot say on camera? No, not at all. I am the worst person to date right now. Why? Because you have no time. No, I'm so consumed by my show, my next show, my third show. For the first time, I'll tell you what's the name of the third show. Okay. Wait, is this the second show right now? This is the first show. Huh? I've almost completed my second. The first one is Mohabbat Zindabad. The second one is Jadugar. The third one is going to be Behrupia, which I've never told anyone. So, this is not because I don't want to disclose it on the camera because there is nothing to hide. Sure. Number one. Right. I'm single. And I'm single now by choice. Okay. Because at this point of time, I have nothing to talk about. Except your show. Except my show. Because you're consumed by it. Consumed by it. हाँ. Shows कह सकते हैं. हाँ. So, आप मेरे को कॉल करोगे and suppose you have a very bad day. Right. At work or something. हाँ. And you're like, nahi, I need some kind of emotional support and this and that. Hi Jay, hi, hey, what happened? How was your day? I had a really bad day. I was like, oh, acha. And then I have to go. No, bro, I'll start zoning out. And then she'll be saying things which are very important to her and I'll be thinking things which are very important to me, and all of a sudden she'll realize that I'm not interested and that leads up to a fight. That way I'm adding more to her bad day. Sure. And that's why I've made this conscious decision कि भाई अभी फिलहाल dating से दूर रहना. So, but like I'm sure, bro, the female attention after a roller coaster in your show, that must be a lot. Like you must be getting a lot of DMs, a lot of like after show, hey, what are you doing? Do you want to कभी आप उनको लगता है अपन ही भगवान. हाँ, मैं bro, I mean I'm telling you this, right? Even if you were like half as good looking as you are right now, you'd still be, because that show is so emotional कि औरत उसके बाद आके बोलेगी. हाँ नहीं, बट मैं रियली यार, आदमी देखो बहन चोद पहले फैल ले फिर तो बात करें. वो आदमी कह रहा है देखो भाई फैलू पहले मैं. भाई ऐसा है, देखो, as long as it's an attention and it's a weekend, enjoy. Doesn't matter, bro. Break the stereotype. What I want to understand is how does your mind see a hookup and a love story, and how's that different for you in your personal experience? In my personal experience. Yeah. I've had this genuinely. I've had hookups in the past. And after a point of time, they stopped making sense. You know, after like मेरे लिए आज की डेट में मेरे को जिंदगी का सबसे बड़ा नशा मिल गया भाई. Stage. And I'll tell you why. एक तो स्टेज पे अगर
डोपामिन की बात की जाए तो वो तो शूट ही मार जाता है बहुत बुरे तरीके से. और दूसरी बात, जब आपका दिमाग आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चलने लग जाता है ना, व्हाट इज द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर एन आर्टिस्ट? What? द वैलिडेशन ऑफ हिज आर्ट. Right. And that for 2.5 hours, what I'm doing on the stage, I'm getting the validation for my art. Nothing else, just validation from my art. कि मैंने एक लाइन बोली, मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ ऑडियंस हंसेगी, वहाँ ऑडियंस हंस पड़ी, मेरे को लगा था इस लाइन पे अपलॉज आएगा, उस लाइन पे अपलॉज आ गया, मेरे को लगा था कि ये लाइन लोगों को हिट करेगी, उनको हिट कर गई, आंसू छल के वैलिडेशन ब्रो. एंड टिल द वेरी एंड 2.5 घंटे मेरे को वैलिडेशन मिलती है. सो दैट इज Enough. फॉर मी. मतलब नींद नहीं आती है. हाँ, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि नींद नहीं आती है, क्योंकि आप शो के बाद किसी भी आदमी को मिलो ना, वो थोड़ा दे लाइक वायर्ड, देव बीन लाइक इन अ एक्ट फॉर सो लॉन्ग. हाँ, आई हैव सीन दैट. तो वो उसके बाद आई थिंक इस नशे के आगे ना सारी चीजों ने ना दे स्टॉप्ड मेकिंग सेंस. अल्कोहल बंद हो गया है भाई. बंद जिसे जीरो हो गया है. डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग बिकॉज इट हैम्पर्स विद माई थॉट्स. द ओनली थिंग दैट आई एम एडिक्टेड टू राइट नाउ इज सिगरेट. वो मेरी छूट नहीं रही है. मैंने बहुत बार कोशिश कर ली. मम्मी ये पॉडकास्ट देख रही है तो मैंने माफ कर देना, ठीक है. हाँ, मम्मी को पता है वैसे सिगरेट पीता हूँ, वो कह रही है छोड़ दे. नहीं छूट रही है यार, वो नहीं छूट रही है. एंड आई एम गिविंग इन टू इट कि भाई नहीं छूट रही तो नहीं छूट रही. बट बाकी सारे जितने भी नशे जो पहले लाइफ में होते थे, नशे कह लो, डिस्ट्रैक्शंस कह लो, जो भी सारी चीज़ें होती थी, सब बंद हो गया. एंड इट्स नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन, it's subconscious. To some degree the art takes over, हाँ. It does. Like there is something about men जहाँ पे काम और काम के प्रति अगर प्रेम आ जाता है, वो खींच के ले जाता है, खत्म कर देता है आपको. मतलब वो एक मतलब वो होता है ना कि an artist sometimes becomes a lunatic. Yeah. हाँ, तो I feel that I'm on the same path. Like I remember भाई, मेरे को ना जैसे पार्टीज का और घूमने का बहुत शौक था. एंड पार्टिंग, नॉट इवन गेटिंग ड्रंक, लाइक जस्ट देखो, पार्टीज आर जस्ट हैप्पी अफेयर एंड इन ग्रेट प्लेसेस. आप जा रहे हो अलग अलग जगहों पे, कभी शिप पे, कभी पहाड़ों में, राइट. आई यूज्ड टू एंजॉय दिस. जीरो मूड ब्रो. आई एम जस्ट सो, यू वर सेइंग नो कि जब आप किसी बंदी से बात करते हो, इट इज ऑलवेज अबाउट योर शो एंड यू जोन आउट. आई हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड. वो मेरे को फोन करती है दिन में 2 बार एंड आई एम लाइक, यार तेरे को पता है कितना मजा आ रहा है काम में. And it just never gets to her and I sometimes feel guilty about it. But then I tell myself maybe I'm in this phase, you know. अभी वो arc है जहाँ मेरा obsession ठीक है. Eventually the point is कि मैं उसका ध्यान रखूँ. Like वो मैं consciously ऐसे सोचता हूँ. But I feel like that's so true. हमारे पास वो पागलपन की tendency हमेशा है जहाँ we'll get sucked into it. And it'll take over our lives somewhat. To an extent, I'll tell you what was happening. So, I was not a comedian. I still am not. But ठीक है, मेरे को लोगों को ना शो में हंसाना था भाई, क्योंकि स्टोरी टेलिंग है, हंसाना है, रुलाना है. अब तो मैं शो में सेक्सुअल टेंशन भी दे रहा हूँ जो तुमने नहीं देखी अभी. नहीं, वो नहीं आया था. हाँ, वो नहीं आया था, अभी आएगा. तो मतलब these are the different kind of emotions. Like the sexual tension is, there is nothing sexual about it, first of all. There is nothing sexual about it. But with a parallel conversation, Ansh, you have heard it, right? With a parallel conversation with nothing sexual in it, I want to give you that emotion. और वो आपको फील होगा. ये क्या होता है ना, जब जैसे कोई भी नया आप कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शो को लेके, आपका सबसे पहले टारगेट क्या होता है? अरे दिस इज वेरी टॉक्सिक. दिस इज वेरी टॉक्सिक. आई एम गोइंग अनफिल्टर्ड राइट नाउ. दिस इज हाउ माय मेंटालिटी वर्क्स राइट नाउ. ऑल माय फ्रेंड्स जो भी हैं, जितने भी एक्वेंटेंसेस कह लो, फ्रेंड्स कह लो, रात को मैंने 1 बजे जोक लिखा है. मैं अपने लेट नाइट जो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है इंस्टाग्राम पे, उस पर मैसेज करता हूँ, एनीबडी हु हैज़ माई नंबर एंड हु वांट्स टू हियर अ जोक. और फिर मेरे को किसी का कॉल आता है और मैं उसको वो जोक सुनाता हूँ. अगर वो हंसा तो जोक सही है, अगर वो नहीं हंसा रीराइट. फिर मैं दोबारा मैसेज करता हूँ. फिर उस बंदे का कॉल नहीं उठाना, दूसरे बंदे का कॉल उठाना. उठाया, उसको जोक सुनाया, हंसा. ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर रिलेशनशिप्स, ऑल जो भी तुम्हारे रिश्ते हैं ना, वो तुम्हारी ऑडियंस बन जाते हैं. और वो सबसे मतलब यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग. Because you have no other objective anymore than to maintain them for your act. Like you talk to them, but जैसे ही वो मतलब if he needs help, I will be there to help them. Sure. I will be there. Like in person. तेरी गाड़ी ठुक गई bro, आ रहा हूँ. I will be there. But तू कैसा है नहीं पूछा. मैंने ये लगा सकते हो. हाँ. इसको कहने का एक दूसरा तरीका है कि मैं अगर वो जैसे ही मेरे को अपना बताना पड़ेगा ना, जैसे ही वो बताने लगेगा कि भाई मैं ऐसे जा रहा था और गाड़ी ठुक गई, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं जोन आउट हो चुका हूँ.
लाइक मेरे को बातें नहीं करनी, मैं फिजिकली हेल्प कर दूंगा. लाइक आई एम ऑन द और नॉट इन दैट स्पेस. लाइक माई ब्रेन इज सो ऑक्यूपाइड कि ये बाकी सारी चीजें रिजेक्ट कर दे रहा है. लाइक वो टकरा रही है, बाउंस ऑफ हो जा रही है. ये तो इसका डाउनसाइड हो गया. आई एम श्योर देयर इज एन अपसाइड टू दिस एज वेल. व्हाट इज द अपसाइड? अपसाइड इज कि मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच दैट पीपल डोंट हैव टू से एनीमोर. हाँ, व्हाट डू यू मीन? एंड अपसाइड भी मैं बताता हूँ कि the other thing that happened recently, when I was talking to someone, they told me कि I told them कि मैं now I have understood when and how much impact I want to leave on a person. Like I can literally control it. Like if I want the person to remember me, मैं वो बात भी कर सकता हूँ. If I want the person to think of me as a very stoic or as a very nosy or whatever, right? Yeah. मैं वैसी कॉन्वर्जेशन भी कर सकता हूँ. मैं जो चाहूँ, मतलब आई कैन लेजिट कंट्रोल माई पर्सनैलिटी द वे आई वॉन्ट टू. लाइक मेरा मेरी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल आ गया, मेरा मेरे इमोशंस पे कंट्रोल आ गया. तो वो इसका एक अपसाइड है कि आई एम नॉट एज स्कैटर्ड एज आई वॉज. सेकेंड ऑफ ऑल, जब वो किसको अच्छा नहीं लगता है यार जब कोई आता है और कहता है आप जैसे हैं. हाँ, अरे मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. किसको अच्छा नहीं लगता? जो बंदा ये चीज़ डिनाई कर देना कि अगर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो झूठ बोल रहा है. आई विल गो एज ब्लंट एज दैट. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई आके मेरे से मिलता है. ये मेरे लिए मेरा हाई है. और मतलब द हाईज आर वेरी हाई, राइट, बट दे कम एट अ कॉस्ट. एंड द कॉस्ट इज बीइंग zoned out in this way. Personal relationships. I have zero personal relationships. Like zero. Apart from family. Apart from family. Family is one thing that I don't compromise on. And like, that's it. How about friends? School बचपन के दोस्त? Yeah, born and brought up in an army background. तो always moving. दोस्त तो कभी बन ही नहीं पाए. प्लस क्या होता था कि जिस टाइम पे बढ़ रहे थे, पहले पालन पोषण हो रहा था और हम जब हम वहाँ पहुँचे कि अच्छा अभी फिर से स्कूल शिफ्ट करना, तो 3 दोस्त इस स्कूल में बन गए, 3 दोस्त उस स्कूल में बन गए. और तब फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ नहीं होता था. एक डायरी में नंबर लिखे होते थे. तब घर पे लैंडलाइन भी नहीं होता था. तो जब तक आप उनको कॉल करते पता चलता कि नंबर चेंज हो चुका है या फिर कुछ भी हो जाता. फेसबुक केम वेरी लेटर. इट वॉज ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज व्हेन फेसबुक केम. How old are you? आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 32. Facebook came in 2007-8 for us. 2007-8 for you. हाँ. And it came much later for us. Okay. Because we are हरियाणा रोडवेज. Right. ठीक है, हमारे पास बहुत पीछे आया था. हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज भी like there was it is not a very well renowned engineering college. Which one? Gurgaon Institute of Technology and Management. अब नहीं मिलेगा, बंद हो चुका है. तो हमारे पास फेसबुक आया. आई रिमेंबर आई ओपन माई फेसबुक अकाउंट. आई थिंक इट वॉज 2011-ish और 2010-11 के आसपास मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला हुआ है. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई बचपन का फ्रेंड्स. मिले, काफ़ी सारे मिले. Added them on Facebook. That's when I realized that I've changed as a person. I was not the same person who was emotionally attached to them back then. तो दोस्त वो वाले तो सारे स्कूल के दोस्त तो छूट ही गए, तुम ये लगा लो. उसके बाद कॉलेज में ऐसा था कि कॉलेज में life happened a lot of things. मेरा कॉलेज बहुत अप डाउन रहा कि like at one point of time there was no one who knew me and at one point of time there was everyone in the college who knew me. And तो तब शुरू में दोस्त बन नहीं पाए बिकॉज माई पर्सनैलिटी वॉज लाइक कौन ही नोटिस करेगा. एंड बाई द एंड ऑफ इट आई वॉज लाइक एवरीबडी वॉन्टेड टू बी माई फ्रेंड. एंड देन बाय दैट टाइम इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट पासिंग आउट. And that is because you became famous in the meanwhile. That was because अभी तक फेमस नहीं हुआ हूँ. अभी मैं कॉलेज में फेमस हो गया हूँ. अच्छा. Because I did some seminar. So I did a public speaking and I did a seminar for awareness against human child trafficking. Okay. And when that happened, the entire hall was filled. Okay. For some odd reason, I don't know how people in engineering were so delicate towards a cause like human child trafficking. And there were like 300 people in that auditorium. And for the first time, I gave a speech. And no student in the history of our college had done that. And I gave that speech and I became very famous in my college. कि 4th year में एक ऐसा लड़का है and he's doing this stuff which is great and this and that. फिर मैं बाहर निकला. कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हो गई. कॉर्पोरेट लाइफ शुरू होने के बाद तो कौन क्या कहाँ रिश्ते बन पाते हैं. नहीं, वो फिर मैनेजर से नहीं बनती थी. मतलब वो कॉर्पोरेट बीइंग कॉर्पोरेट इट सक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई लेफ्ट. उसके बाद भी जो लाइफस्टाइल रहा व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, आई ट्रैवल्ड ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट गोवा.
Because because I just didn't want to go there. why? I don't know. What is wrong with Goa? Something flipped inside me after 2015. Till 2015, I was like, probably a playboy, you can say it. Okay. And 2015 mein something, I don't know. 2015 is when I had my first breakup. The nasty one that you were saying? The nasty ones don't leave a everlasting impact. It's the good ones that. हाँ तो this breakup happened, and this was the girl that who turned me into a man, probably. Who was always available. Long distance relationship हो गया because she was from Mumbai. I was working based out of Gurgaon. I would visit Mumbai. हमारा ये चलता था कि हर 2 हफ्ते में either I'll fly down to Mumbai or she'll come to Gurgaon, and that's how we used to meet. उस टाइम इतना सोशल मीडिया सब कुछ इतना एक्टिव नहीं होता था. All of us had corporate lives and everything. तो वो सारी चल रही है. She would come, and slowly, gradually, the distractions came into my life where okay, अच्छा मेरी बंदी तो दूर है. अच्छा इससे बात कर लेता हूँ. ये तो पास में है. So I started talking to her, and did not. I don't know if this is technically cheating or not. I don't know what it is, but I started talking to her, and then eventually confessed about it. To your main girlfriend? Yes, that I was talking to this girl, but there was nothing sexual about it. There was nothing misleading about it. But उससे बात करके अच्छा लगता था. Damn, you made a mistake there, bro. I know. You told her that you like talking to another girl? Bro, this is a controversial statement, but you have more odds of being forgiven for hooking up with a random girl than for liking a conversation with another woman. Men need to get this down. This is the difference between psychology and engineering. Yeah, bro. यहाँ से थोड़ा सा फर्क आता है. Because उसने वहीं काट दिया होगा आपको. नहीं, उसके बाद कटा नहीं ना. बात ये यहीं पे काट दिया होता तो बात सारी होती. तो then I tried to fix it because I realized what my mistake was. Right. So I tried back and forth. पर वो उस लड़की से बात करने में मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरे को इनसे बात करने में मज़ा नहीं आ रहा था जो मेरी गर्लफ्रेंड थी. तो उनके सामने कन्फेस करके ये सिचुएशन तो सॉल्व नहीं हुई थी. इट वाज स्टिल देयर दैट आई वाज स्टिल नॉट एंजॉयिंग माय कन्वर्सेशंस विद हर बिकॉज़ प्रॉब्ली आई हैड grown as a person or something. Or you just spent enough time, eventually boring हो ही जाता है. हो जाता है. हाँ. तो universal है. And when you have got enough time in your hands कि हाँ ठीक है यार इसके बाद भी तो डेट कर सकते हैं किसी को, you always start taking things for granted. 100%. Until unless there is a clock ticking on your head. Yeah. So at that point in time I was in that stage. And ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन थी वो इन पे निकल गई. वो सारी चीज़ें हो गई. कोई भी गुस्सा आ रहा है वो इन पे निकल गया. एक टाइम पे भूल गया कि दैट शी एग्जिस्ट्स इन हर रिलेशनशिप, कि इनकी भी कोई लाइफ है, इनका भी कुछ है. आई फॉरगॉट अबाउट दैट. देन इवेंचुअली वेंट टू मुंबई वन नाइट एंड आई ब्रोक अप विद हर ब्रो. तब तक लेकिन रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गया होगा. स्ट्रेन हो गया था. बहुत बुरे तरीके से हो गया था. एंड शी वाज लाइक यू नीड अ थेरेपिस्ट, यू नीड टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट बिकॉज यू आर नॉट द पर्सन. तुम अपना हमेशा यू आर 24/7 इरिटेटेड. तुम्हारे से कोई भी बात कर लो यू एंड अप getting hyper, this and that. मतलब there is something wrong, you need to get it fixed. या तो तुम्हारा कुछ कोई you are in a situation which you are not telling me. मैंने बोला there is nothing. It's just my life right now which is not making sense to me. And then slowly gradually I broke up with her. Turned more aggressive. Aggressive हो गया हूँ ऑफिस में. अपने मैनेजर को कुछ नहीं समझ रहा हूँ. जॉब छोड़ दी है. जॉब भी ऐसे छोड़ी है, नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया है. One night just left. I was like fuck. छोड़ दिया. उसके बाद ट्रैवल करना स्टार्ट किया. व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग आई ट्रैवल्ड ऑल द स्टेट्स. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आई एम मीटिंग न्यू पीपल, न्यू पर्सनैलिटीज. व्हेन आई एम मीटिंग न्यू पीपल इसका एक अलग चस्का होता है. हाँ बिल्कुल चस्का होता है. और वो चस्का क्या होता है कि जब आप किसी से मिल रहे हो ना, उसकी पर्सनैलिटी अरे भाई ये कितना कूल है यार, उसकी आंखों में अपनी तारीफ ढूंढते हो. देन यू सीक दैट वैलिडेशन ना वहाँ से. बिल्कुल किसी तरीके से. एक बारी तू कह दे कि मैंने स्मार्ट बात करी है. हाँ. फिर आप स्लोली ऐसे लोगों से मिलने लग जाते हो. आप your personality starts become a collage of the people that you have met. Right. उनका किसी का छोटा सा पार्ट, किसी का छोटा सा पार्ट. तो वो सारी चीज़ें बन गई. उसके बाद मेरी जो पर्सनालिटी थी ना, वो एक ऐसी चीज़ हो गई which was adaptable to all. Right. Likeable by all. And a person who's likeable by all, never trust that guy. Yeah. Because he's hiding something. Yeah. And when what happens in Mohabbat Zindabad happened. That's when I came to grounds with myself. That's when I decided to go to the therapist finally. Is there something that I have missed in asking you, or is there a question you want to ask me? Is there something? I wanted to ask you about मौत के बारे में सोचते हो कभी?
बहुत अनआयरॉनिकली पता है भाई, मैं एक्चुअली क्योंकि ना जैसे क्या होता है ना, मैंने एक प्रिंसिपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जब भी दर्द हो रहा होता है ना, मैं सोचता हूँ यार ये मौत से तो बेटर है। आप समझ रहे हो, कभी मैं मसाज करवा रहा हूँ और बहुत दर्द हो रहा है ना, जैसे कभी फिजियो के पास, मैं सोचता हूँ भाई पैर कट भी सकता था। एंड इन सम वे व्हाट आई थिंक इज, सी मौत इज द अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, उसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। और जब तक वो सच आपके दिमाग के कोने में नहीं है ना, ये सारी जो हम सुंदर बातें करके ना, ये समझ नहीं आती भाई। आप आज अपनी माँ को लेके इतने जागरूक हो ही इसलिए क्योंकि आपको दादी को खोने का डर है और दर्द है। आप समझ रहे हो? तो भाई मौत के बारे में तो मैं सोचता हूँ अनआयरॉनिकली काफी। I have another question. प्लीज। Do you ever think, and this is not where I'm at, this is a very serious question. I'm not trying to mock anyone, or I'm not trying to. This is a very serious question. If today I told you that there was no afterlife, once it's the end, it's a full stop. It's the end. TV switch off हो गया। हाँ। Yes. Would you change anything about what you do, what you are? I can give you a very detailed प्रखर के प्रवचन answer if you're okay with it. Bring it on. So effectively, and I think we referred to this a little bit ago. जब आप आए थे मैंने आपको बोला देखो भाई मैं ना सीख चुका हूँ गुस्सा करके भूल जाना, क्योंकि गुस्सा करना is a necessity, उसको दिमाग में रखना is a burden। ठीक है? आदमी पाप और पुण्य के बीच में जो डिवीजन है ना, वो आफ्टर लाइफ से मैटर, उसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर मैं अभी आप सपोज जय उठ के जाता है, मैं कहता हूँ अंश को अबे जय साला दिया है, ठीक है क्या है, कुछ भी आगे बोल गया। What I'm doing in that moment is I'm seeing things that I like or dislike about you, and I'm totally degrading them. And in that moment also doing the same for me. The same artistic spirit that shines deep in you has been reduced to nothing also inside me because मेरे को एक ego complex है। All actions you take, उसका पाप और पुण्य उसी वक्त वहीं के वहीं, उसका दर्द और खुशी वहीं के वहीं मिल जाती है। और मैं तो इनफैक्ट कहता हूं पहले मिल जाती है, क्योंकि सोचो उस आदमी के मन का मैल जिसको एक अच्छे खासे आदमी को बाद में चूतिया बोलना पड़ रहा है। आप सोचो वो मोटिवेशन उस मेरे मन में कहां से उठी होगी कि जय ने मेरे साथ आके इतनी देर लगाई, इतनी बात करी, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला, उसके शो में मेरे को इतना मजा आया, उसने मेरे को इतनी इज्जत दी, और मैं कह रहा हूं सोचो। तो इन इफेक्ट the concept of afterlife as a story, and you understand stories, was introduced because आदमी इस जीवन को ढंग से जिए, क्योंकि वो समझे कि मौत का मतलब ये नहीं कुछ भी। बट अगर आप इतनी देर एक्चुअली शांत और सन्नाटे में बैठ लिए, अगर आपने एक्चुअली वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अंतर्मुखी होना, दृष्टा भाव, साक्षी भाव जो भी कहते हैं, अगर आपने वो एक्चुअली अचीव करके एक बार भी देखा ना, तो आप समझ जाओगे कि ना ये तो ऑलरेडी मन में द्वेष आ गया, मन में दर्द तो पैदा हो गया। मेरी लाइफ का मैं हमेशा समझता हूँ, when you ask this question, are you an artist or do you want to be an artist, and you speak to artists, my life's greatest art piece is my life, is the way I live my life, and I've invested a lot of hours into thinking about it, and therefore prakhar ke pravachan is a very obvious consequence of it, because I'm talking about how I live my life. And the long answer to your short question is, I would change nothing, because I understand the cost of making a mistake is here and now. It has already occurred. You can think of endless things. But what about legacy? I don't give a shit, bro. Yeah? I don't give a shit, bro. I'm playing a video game. The way I see it is money and career is the current video game I'm playing, and I'll play it to fruition. I'll take you one step deeper, actually. The point of doing anything in life is to get done with it. I'll repeat it. Explain. Yeah. Most people think to live life, you must do things. है ना? मेरे को कुछ करना है, मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो I'll do things. मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, आप सोचो, think of the time when you hadn't had sex for the first time. It was such a deep impulse. Then you had sex for the first time, and now you don't even care. I remember a time when I would not grow facial hair, and I wanted it so bad, and then it came out, and I didn't care. I also remember a time when I wanted to be seen, and so I went after fame, and now I'm famous. And frankly, आप कह रहे थे ना, मैं नहीं मानता कोई आदमी खुश नहीं होता, मैं उतना खुश नहीं होता कि जब मेरे पास कोई आता है फोटो खिंचवाने। आई एम डन विद फेम। आई एम प्लेइंग द वीडियो गेम स्टिल, बट नाउ आई एम प्लेइंग इट फॉर मनी, एंड आई एम प्लेइंग इट एज अ करियर। ठीक है, अच्छा लगता है ना? पर हाँ ठीक लगता है, अभी भी अच्छा लगता है, बट लाइक इट्स नॉट द फीलिंग आई यूज्ड टू गेट लाइक 2 years ago. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट हैपेंस इन लाइफ इज व्हेन यू डू थिंग्स ट्रूली, you never want to do them again, because that video game gets over, and you can trace it back to almost anything. पहली बार जब आदमी, आपने शराब पी, पहली बार पीने में क्या होता है, पहली अब नहीं मन करता।
कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जिनको आप खुजाते रह जाते हो, खुजली बढ़ती चली जाती है। आपके लिए वो सिगरेट है, वो पीने से खत्म नहीं होती, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक और पीते That's a very nice metaphor. ठीक है। और इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप फर्दर एंड आई डोंट मीन टू प्रमोट स्मोकिंग व्हाटसोएवर, बट इन सम वियर्ड ट्विस्टेड वे योर डिजायर टू कीप स्मोकिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ फोर्स, बिकॉज वो एक ऐसी खुजली है जो जिंदा रखती है। जैसे कोई मेरे पापा का करियर है, वो ऐसी खुजली है, उनको भी 30 साल और है भाई, क्योंकि वो खुजली जिंदा रखेगी, मेरे को करते रहना है, मेरे को करते रहना है। आप समझ रहे हो, आदमी जाएगा नहीं। सो इन सम वेरी वियर्ड वे देयर वाज अ स्टडी डन अबाउट सम ग्रुप ऑफ पीपल हु वर हेवी स्मोकर्स हु लिव्ड ऑल अंटिल 100, पूरा ट्राइब, क्योंकि उनमें वो खुजली है, वो खुजली खत्म नहीं होती। The point of doing anything in life is to get done with it. And currently at 28, I am playing the career and money game. This is how I talk to myself. And in 6 to 7 years, I think I'll be done. And then I will graduate to the next game. And the next game, you know what that looks like. You'll see entrepreneurs, बन गए $1 million, अब मेरे को world change करना है. Then you try to change the world. You change the world in some way. You're like, अब मैं इससे. Eventually, the last game that is left is silence. Silence. And that is when you are going into अध्यात्म. मैं फोर्स नहीं करता अपने ऊपर स्पिरिचुअलिटी. मैं विपश्यना बैठ के आता हूँ, मैं दुनिया भर के सारे ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं कभी फोर्स नहीं करता, बिकॉज जिस दिन अध्यात्म को आना होगा ना, मेरे को धक्का नहीं मारना पड़ेगा। उस दिन अपने आप मन करेगा आप शांत हो जाओ, उस दिन मैं अपने आप हिमालय चला जाऊंगा। मेरे को मेरे साथ इंटरनली उतनी क्लैरिटी है। सो I would change nothing about my life because the way I see it is I'm in a video game arcade and there's many video games and I'm moving from one video game to the next. सबकी लाइफ में अपने अलग अलग वीडियो गेम्स हैं। आपकी जैसे लाइफ में आप कह सकते हो डेथ इज अ वीडियो गेम दैट केम टू सून। मेरी लाइफ में नहीं आया, वो एक दिन आएगा, उसमें मैं भी खोऊंगा, मैं उससे भाग नहीं सकता। और जब वो सारे वीडियो गेम्स खत्म हो जाएंगे, लास्ट में जब आप काउंटर पे जाओगे ना पैसा देने, उस काउंटर को कहते हैं अध्यात्म। अब सब खत्म, अब क्या सच है, और उस टाइम पे जो निकलना है वो निकलेगा भाई। The reason I asked you is because somebody once asked me कि do you think about leaving a legacy behind? And my answer was not really. Like once I'm dead, will I even have the ability to care about it? Bro, मैं इस चीज की टेंशन लूं, वैसी बहनचोद नहीं समझते लोगों की कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब मैं मरने के बाद भी टेंशन लूं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। ना भाई, नहीं सोचा जाएगा। So I have zero plans of leaving a legacy behind. I just want to do the stuff that I want to do, and I want to enjoy the process. I want to make people laugh. I want to make people cry, get done with it, and then probably settle up somewhere and build that school, have 10 buffaloes, live my life in peace. But I'll tell you what survives. ठीक है, legacy is a non-concept. It's a ego massage. Stories survive भाई. Stories survive. And if you think of it ना, The artist is immortal. हाँ, and if you think of it, एक मैंने कोट पढ़ा था बहुत पहले और मैं ना बिल्कुल वो हो गया था। ठीक है, वो कोट था, इन अ वे वी आर ऑल अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच अदर। और मेरे को ख्याल आया कि एक सेंस में ना अंश के पापा और मेरे तक आप डायरेक्ट लाइन खींच सकते हो, क्योंकि मैंने अंश से बात करी, अंश से 4 बातें सीखी हैं जो उसने अपने पापा से सीखी हैं। और इस सेंस में अंश के पापा मेरे अंदर जीवित है भाई। आप समझ रहे हो, उनकी लेगेसी कुछ भी हो, मेरे अंदर उनका एक अंश टेक्निकली आ गया ना, और वो आगे भी जाएगा। अब अगर आप इसको इस तरीके से देखो, कोई भी आदमी अगर आपके शो में आता है ना, they take a part of me with themselves and the story. No, and go further. And your dadi. They take a part of your dadi with themselves, bro. They take a concept of that dadi and the stories and the watan and the veer. And so, in some way, what you should aim to leave is, you know what people call impact? I say stories. Stories. You leave stories behind. And you are in the business of stories. Stories is all that I want people to remember me by. That's it. मतलब, और वो है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये है कि वो होता है ना कि आप कुछ चीजें यूनिवर्स में ना चाहते हुए छोड़ जाते हैं। लाइक आई थिंक आई एम इन द बिजनेस ऑफ दैट। आई डोंट नो व्हाट आई एम लीविंग बिहाइंड। Bro, you are leaving your grandma's legacy behind. And that's all I want. I mean, think about it. She said the same thing probably. She didn't want nothing to be left behind, but you're carrying her legacy. Someday somebody is going to carry yours because they're going to be so impacted by Jay. They're going to be like, I do what I do because of Jay. This is how we all live forever in one way, na? Legacy is nonsense, bro. Legacy is, I think, legacy is ego massage. Legacy is basically a cloud that you're trying to catch. Yeah. वो नहीं आना, कहानियां छोड़ जाओ, impact छोड़ जाओ भाई. That's it. And मुस्कुराहट छोड़ जाओ भाई. बहुत वही है, मैं यही कहता हूँ हमेशा लोगों को. And one of the last things that I would like to say is that stories are at this point of time in our country are underrated. Yeah, man. So write a story for yourself and make sure it has a very grand ending. And actually, I'll finish off by saying I cannot tell you hard enough
how important it is for you to go to his show, because comedy is still popular enough where you understand what it feels like. So you go there where you're like, मेरे को हंसना है, I'll go to comedy. It's like movies are much more accessible. So you go to movies. This is such a new genre in its own way. Only very few people are doing it. And the skill level for you to be trapped in a room for 3 hours and not even care once for time to just go, bro, मैं बता नहीं सकता. It was an experience. I had to put that story because I want people to know. And I'm so glad you made time out, bro, and you were kind enough to go deep. It was my pleasure, Prakhar. Yeah. It was my pleasure. If I wanted to come out in front of the world, because this is the first time that I've come out in front of the podcast unfiltered, in front of the people unfiltered, had to be you. Bro, And thank you so much for saying that. It's been an absolute Because you pleasure, took man. the effort to come to my show, watch it, and thank It you was so my much. pleasure, man. Thank you so much. Thank you so much.